ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। गंदगी दा मुद्दा, गंदगी दा टुंड मुद्दा टुंड मुद्दा टुंड ऐसा मोदी ने जाए सुलाद। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਟਕਾ ਟਕ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲਾਤੀ। ਟਕਾ ਟਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਗਾਂਡੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਤੀ ਉਹਨੇ। ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਤੋਂ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਬਾਬੀਲਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਬਾਈਕਾਟ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਬਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਵਗਰ ਪੂਛਾਂ ਹਿਲਾਦੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤਲਵੇ ਝੱਟਦੇ ਭੱਜ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਰਬਾਬ ਨੇ ਕੀ ਖੋਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹ ਜੀ ਘੋਰ ਆਏ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਜੀ ਉਮਰ ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲੀ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਜੇ। ਬੁਲੀ ਕੁੱਤਾ ਉਮਰ ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲੀ ਕੁੱਤਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲੀ ਕੁੱਤਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਮਰ ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਨੀਚੇ ਗਏ मेरे बाद तेरा ठोकू बैठा। बुली कुत्ता उमेर बाप दी राखी वास्ते हेलो जी बुली कुत्ता। तेरा ठोकू सीगा, तेरा यंदड़ आया। अबाबील दी मां दा यार आया है मुद्दा टुंड। आओ जी फरमाओ की कहना। तेरा प्यो टुंड बैठा है इथे, तेरी थोड़ी टुंड दिंदा रहा। अमर नज़ीर दी मां दा यार मुद्दा टुंड आया जे, एदा गल कर लो। तेरी मां दी बुंड च टुंड दिंदा रहा अमर नज़ीर दी मां दा मुद्दा टुंड यार आया, एदा ले लो। अमर हुण अपनी भैन देण लगा जी इहनूं। तू टुंड ले लिया कि नहीं ले लिया? अमर नज़ीर दी मां दा यार आया, मुद्दा टुंड कर गल भी की करनी है। ओए चिस्तानी टट्टे, अमर नज़ीर के टट्टे तू क्या कर रहा है? मुद्दा टुंड भौंको की भौंकड़ा है। वाला साहब इतना बनाएंगे कोई गैरत कर ले, कोई लानतिया तेरा ना कुराने पाक विच अबाबील बगैरत इंसान। अपने कोई इलम दा ही हया कर ते इन्हां नूं कुत्तियां नूं अपने घर लैके चल भज इथों। जी हबीबुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜੇ? ਇਹ ਜੀ ਕੱਲ ਅਬਾਬੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਮੇ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੇ ਰਬਾਬ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਏ, ਨਾ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਕਾਫਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਫਰ ਜਮਗਟਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਓਬੰਦੀ ਜਮਗਟਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਬਾਬੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿਓਬੰਦੇ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ? ਜੇ ਉਮੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਨਾ ਗਈ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਮੇ ਰਬਾਬ ਕੋਲ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਉਮੇ ਰਬਾਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਉਮੇ ਰਬਾਬ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਮੇ ਰਬਾਬ ਤੇ ਥੁੱਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਭੱਜੋ ਇੱਥੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਐਡੀ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਕਰਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਪੀੜ ਦੀ ਇਗਨੋਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਖੁਰਕ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਖੁਰਕ ਪਵਾ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਸਲਮਾਨ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहमदी। जी फरमाइए आप। एक सेकंड मैं ਕਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਇਆ ਕੋ ਪਾਊਡਰ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਬੈਠਾ ਬੀਬੁਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜੋ ਜੱਗ ਦੀ ਮਚੀਏ ਕੰਗਰੀਏ ਦੁਸ਼ਤੀਏ ਤੇਰੀ ਮਾਰ ਸੰਗੇ ਜਲਾਨੀ ਮਾਰਵਾ ਕਿਸੇ ਕੰਗਰ ਦੀ ਮਚੀਏ ਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕੀ ਰਸਮਾਨੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਢੇ ਦੇ ਠੋਕੇ ਆਮ ओके सर कोई नहीं। अबाबील मुद्दा टुड़ तेरी मां दा यार आ गया नु ले जा। ਓਏ ਨੂੰ ਆਨ एक मिनट सबर। मैं हुण के कह के गया हूं मैं साहब, मैं हुण के कह के गया?
मेरी बात सुने, देखिए अब्दुल्ला साहब, आप मुझे कह कर तो चले गए, ठीक है, आप जाके इनको रोके कि जब आपने बाइकाट किया हुआ है तो उधर लेने क्या जाते हो, क्यों जाते हो वहां पे? अब अबील के पास जाए भैन जो पेश ऐलान करना करता है। मैंने आपको मिन्नत करके मिन्नत की है कि एक 8 दिन सब्र कर जाओ, इनको उठाओ ही नहीं, क्यों उठाते हो? बात खत्म, दफा करो, छोड़ो। कीड़ा ਇਹਦੀ ਫੁੱਦੀ ਕੀੜਾ ਇਹਦੀ ਬਾਤ अपनी ਆਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀ आइडिया ਗੱਲ बदल बदल के जो आए तो उनको क्या करे, हमें क्या पता कौन है। उठाओ ही नहीं, दफा करो, मैं बोल रहा हूँ जो जानने किसको वाले ना उठाएं, किसको ना उठाएं, हमें इसका डर है। खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो, अल्लाह से मेरी करो। बात सुनो, करना है अल्लाह का वास्ता है, सिर्फ वही लोग उठाओ जो जानने वाले हैं, बाकी को छोड़ो। एक 8 दिन मैंने कहा है तुम सब्र कर जाओ, फिर देखते हैं ये क्या करते हैं। भाई अब्दुल साहब, ये मैंने तो अपने कितनी दोस्त बड़ी हमने नियत जो की किया है। वही कर रहे हैं ना इन्होंने। अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह मुझे से करो, मुझे एक बात अल्लाह से बताओ, करो। मुझे एक बात बताएं अब्दुल साहब, आप माशाल्लाह बड़े अच्छे जी, जी। इंसान हैं, मुझे एक चीज बताइए कि बाइकाट का मतलब क्या होता है? भाई छोड़ो उनको, मैंने तुम्हें कहा है उनको छोड़ दो, फिर उनसे बात मुझे करते हैं। ये अगर वो बताएं, 2 दिन बाइकाट नहीं का क्या सब्र मतलब करते, होता है? फिर देखते क्या, फिर उनसे बात करते हैं। सिर्फ बात पहले तो मुझे सुनो ये ना। बताएं बाइकाट का मतलब क्या होता है? वो बाइकाट ठीक है कहते, लेकिन नहीं रोक रहे। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक 8 दिन सब्र कर जाओ, जो जानने वाला नहीं है उसको छोड़ो, उठाओ ही नहीं। ये क्यों गंद फैलाया हुआ, इतना क्या फायदा है इसका? गुनाह अपने जिम्मे भी, उनके जिम्मे भी, ये तो है वैसे ऐसे ही है उनका। तो देखिए जी, कुछ भी मेरा नहीं तो जाना। कोई गुनाह नहीं, क्या मैंने फायदा तो है? उनका जवाब दिया है। मैं तो उतनी गंदी जुबान भी नहीं इस्तेमाल करती, मैं तो कुत्ते को कुत्ता कहती हूँ। उमर जो अब्बाब है ही साहबा, कुत्ते एक हैं जो मिनट। भौंकते हैं। उमर अब्बाब वो साहबा, मैं मुझे तो थोड़ा गाली टाइम भी दे नहीं दे रही, दीजिए। वो है ही कुत्ते हैं। मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए उमर अब्बाब साहब, जी साहब, 2-4 मिनट रुक जाइए। ये कहाँ है? अब्दुल वाहिद नाम है भाई आपका? जी जी, अब्दुल वाहिद साहब जरा मैं खोलिए। अब्दुल वाहिद नाम है आपका भाई? मेरा नाम अब्दुल वाहिद। अब्दुल वाहिद भाई, जो भी हुआ, जिसने भी किया, उस बात को मैं कर ही नहीं रहा। मैंने इन लोगों से कहा कि आप जो है सुलह कर लीजिए उमर अब्बाब साहिबा से, अल्लाह का यही हुक्म है। ये गंदगी क्यों हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने कहा मरते दम तक हम सलाह नहीं करेंगे, भले अल्लाह पाक की जो है ये जो आयत है, जो हुक्म है, कहते इसको हम नहीं मानते। साफ कहा मूसा ने कहा, मेरी बात सुने जैद भाई, मेरी बात सुने। साफ कहा। जैद भाई मेरे एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। जी, जी। मेरी बात सुन लीजिए। आप जाइए मूसा भाई के पास कि एक बंदा सुलह करने के लिए तैयार है, ये गंदगी जो फैली हुई है ये कोई अच्छी बात नहीं है। तुम लोग जाते हो, ये खातून से तुम्हारा क्या लेना देना? कुछ भी हो भाई, उसको छोड़ो, बात खत्म। कोई आता है यहाँ गाली देता है, कोई आता है यहाँ बदतमीजी करता है, कोई आता है यहाँ पर झूठ बोलता है, कोई आता है यहाँ पर सेक्स फिल्म चलाता है। भाई जाओ, बस अपना काम कर लो। हम लोग मुसलमान हैं, तुम लोग जो है वो कादियानियों के सहूलतकार हो। तेरे बाप ने तुझे सर्टिफिकेट दिया था और हमें तुम्हारे बापू ने सर्टिफिकेट देना है कि ये कौन है? उमर बाप पीछे चली गई है, पीर अल्लाह के साहब बंदो। रोड बंद हो जानी है अब। हाँ, वो उमर बाब साहब हमेशा ऐसा करती हैं। भाई अगर आपने नसीहत करना है और अल्लाह से आपको कोई डर है, खौफ है, वाकईतन आप एक मर्द हैं, तो आपने जाना है उनके पास। उनको लोगों को पसंद नहीं है तो अल्लाह के लिए ये झगड़े छोड़ दो, सुलह कर लो, इतनी सी बात है। जैद भाई मेरी बात सुनो। आज के बाद नहीं, मेरी बात पूरी हो जाएगी तो सुनूंगा ना। जी जी, आपको बड़ी जल्दी है हमें नसीहत करने के लिए, बड़ा जल्दी है आपको हमें जैद भाई मैं नसीहत नहीं कर रहा, मैं नसीहत नहीं कर रहा, मैं रिक्वेस्ट कर अच्छा, रहा हूँ। मेरी बात मैं तो रिक्वेस्ट सुन कर रहा हूँ लीजिए, जैद भाई, मेरी बोला बात मैं सुन रिक्वेस्ट लीजिए। कर रहा हूँ, मैं नसीहत नहीं कर रहा। मैं आपसे कर रहा हूँ रिक्वेस्ट। आप जाइए उनके पास, देखो आपको क्या कहते हैं। पीर साहब आप ये बात क्यों कर रहे हैं? देखिए हमें एक नसीहत सेकंड, मत कीजिए। वहीर साहब मेरी सुने बात। हम सलाह के लिए तैयार नहीं, अल्लाह का हुक्म है सलाह करो। पीर साहब नहीं, पीर साहब मेरी बात सुने, आप अपनी बात करें, मेरी यहाँ पर बात ना करें। उन्होंने नहीं, जो करना है मेरे लिए मेरी बात सुने वहीर साहब, नहीं सुनना चाहते। मेरे लिए ना वो कल समझ- मोहतरम थे ना मेरे लिए आज अब्दुल भाई, मोहतरम। बार बार आप आते हैं, 5 दिन के लिए रुक जाइए। नौकर हैं आपके, हम तुम्हारी बात माने? तुम जो 2 साल से वो कर रहे हैं, तुमने रोका उनको? ये जो गाली गलौज कर रहे हैं, मैं तो नहीं किसी के पास जाके गाली गलौज कर रही। मेरे घर आके कोई पत्थर मारे तो मैं उसको रोकूंगी नहीं। मत कीजिए आप लोग बिल्कुल सही आप, कह रही ये रोकोगी। नसीहत हमें नहीं कीजिए कि 2 दिन 4 दिन 1 घंटा
एक सेकंड ये जी एक हल्फी बयान आया किसी गंदी माँ की नस्ल, किसी कुत्ती का बच्चा आया, ये किसी तमाशा गंदी लगा माँ है। की औलाद कहता था मैं हलफ उठाता हूँ, मेरी माँ मुझे ये कहती थी लख दी लनत तेरे मुंह दे उत्ते किसी कुत्ती दिया बच्चिया, किसी कुत्ती दिया नस्ले। अब पीर साहब मुझे बोलने पर दिया कुत्ती जाएगा दिया या नस्ल ये किसी बकवास? गंदी माँ दिया भज जाए तो किसी हराम दी दिया बाला। ਨਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਥੱਲੇ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਥੱਲੇ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਇਹਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰੋ ਉੱਤੇ ਭਾਗ ਵੀਰ ਥੱਲੇ ਨਾ और ਲਾਇਓ। कुत्ती दे बच्चे दे सिर दे विच पेशाब करो सारे कादियानी किसी दली माँ दे बच्चे बोलने दे। दीजिए इब्राहिम भाई ਇਹ हराम को। दलील करो। कहता सी, इब्राहिम मैं भाई को कुरान बोलो। चुकरा मैनू कहती सी। ओ मैं एक मिनट बात तो उसकी सुन लेना, अगर गाली देगा तो फिर बात करेंगे। बात सुन ले। किसी दली माँ दिया बच्चे ओ मैं उसकी बात तो सुनने ये देना। ज़बान है इस औरत की। तेरी गल सुननी है किसी हराम दी दिया बाला। ਉਮਰ ਬਾਪ ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਕੋ ਨੀਚੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। अब तेरी औकात बताने के लिए आया हूँ मैं। कुत्ती सबर दिया कर, बच्चिया चल ना तेरी औकात बता, तू सबर कर म्यूट। इब्राहिम औरत को कहे मुझे मैं बोल। बोल रहा हूँ मीर साहब, इब्राहिम आपकी भाई बात उमर बना रही है, अबाब म्यूट करें साहिबा जरा। इनकी बात ऐसे वीडियो सुनो। अच्छा पहले मैच, अच्छा चले मैं म्यूट लगाता हूँ, इसको कहे बोले बोल। इब्राहिम साहिबा, इब्राहिम साहब मेरी बात भी सुन ले, मैं कह रहा किसी हूँ हराम दी दिया बाला की अपनी शक्ल देख, अपना मुंह देख। आ कहदा उमर मैनू अबाब साहिबा इनकी बात कुत्ती दा सुनिए। बच्चा मेरे को लाके हराम दी दा बाल कहदा है मुझे आप किसी ने इब्राहिम भाई तस्वीरें की बात भेजी सुन है, ले, मेरी उमर आपसे अबाब बड़ी साहिबा। जरूरी बात करनी है। देख ले पीर साहब, मैंने कोई दलील गाली मेरे ब्लॉक कर देता किसी कुत्ती दा नस्ल शक्ल वेख अपनी तेरे ये मुंह औरत- ते जुतियां मारा में रख रख के किसी कुत्ती दी नस्ल। ये ऐसे वीडियो ना उमर अबाब ऐसे साहिबा वीडियो उनकी ना बात। क्यों ये करे? औरत उमर क्यों अबाब करे साहिबा वीडियो ना करे, किसी म्यूट कुत्ती करके। दे पुत्रा? म्यूट किसी करके कुत्ती दलील मारे करे। बच्चे ते वीडियो ना किसी दली दे बच्चे वीडियो ना इत्थे दली दे बच्चे तेरी हर उमर अबाब साहिबा, उमर अबाब वीडियो साहिबा। हर वीडियो भाई एक मिनट बात तो सुनिए, दली मां दे बात बच्चे सुनिए, वीडियो थोड़ा सा लाए बात थे। सुनिए ना चल, भाई। जल्दी ਐਸੇ कर, ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਦਲੀਲ ਕਰੇ ਉਮਰ जल्दी ਬਾਪ कर ਨੂੰ। वीडियो ला। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। वीडियो ਉਮਰ ਬਾਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ऐसे ਚੁੱਪ ਕਰੋ। कुत्ती दे बच्चे इत्थे वीडियो ला किसी दली मां दे यार बच्ची भाई आप यहाँ पे ड्रामा देख रहे हैं बैठ नजमा के। दे यारा ये इत्थे आप वीडियो हम ला। लोग इनका मामला ये चालू देख- है। ये आपका मामला नहीं है, मामला है वीडियो ला मुसलमानों इत्थे का। क्या तमाशा रखा हुआ है? इब्राहिम इब्राहिम संजय खसमा इत्थे वीडियो ला। ओ मैं एक मिनट चुप करो इब्राहिम प्लीज बात सुन ले ਅਬਦੁਲ यार। ਕੋ ਨੀਚੇ ਤਾਰੇ ਪਲੀਜ਼, ਅਬਦੁਲ ਕੋ ਨੀਚੇ ਤਾਰੇ। वो तुसी सानू क्यों फोन किया है? ਇੱਥੇ ਪਿਓ औरत ਦੇ है। कौन ਇੱਥੇ फोन ਵੀਡੀਓ किया? ਲਾ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਖਮਾ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾ हेलो इससे ਕਿਸੇ ਦੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਔਰਤ ਕੋ- ਨਜਮਾ ਦੀਆਂ ਖਸਮਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਸਮਾ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ मुझे ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਐਂਜੀ ਦਲੀਲ ਕਰੋ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬਾ ਮਿਊਟ ਲਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਇੱਥੇ ਲਾ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਲਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ। हर वीडियो ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲਾ ਤੇ ਲਾ ਇਥੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਇੱਥੇ। ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਲਫ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗੰਦੀ ਮਾਂ ਦਿਆ ਓ ਜੀ ਓਏ ਉੱਠ ਕੁੱਤੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾ औकात ਇੱਥੇ ਨਜਵਾ ਦੇ ਖਸਮਾ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਤੇਰੀ। ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ये ਉੱਠ ਸ਼ੇਰਨੀ ਏ ਸ਼ੇਰਨੀ ਤੇਰੀ- ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬਾਪ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਬਾਪ ਬਾਤ ਸ਼ੇਰਨੀ ਕਰਨੇ- ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲਿਆ ਲਿਆ ਦੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਦੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਇੱਥੇ ਨਜਵਾ ਦੇ ਖਸਮਾ ਕੁੱਤੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ। जाहिर भाई मैंने इसको ये कहना था कि इसने हलफ उठाकर इसने ये बात कही कि मैं कुरान उठाता हूँ, कलमा नहीं खा रहा, मैं कुरान उठा रहा हूँ। कि उम्र बाप मुझे ये कहती थी, मेरे पास उसकी इतने गंदे अल्फाज बोले, कहते मेरे पास उसकी वीडियो प्यो दा तो लादा क्यों नहीं। उमर बाप आप शेरनी की बच्ची हो, यकीन करें आपने साबित। अरे भाई मेरा तो बंद है, म्यूट है, फिर भी आवाज़ मेरी तरफ। ਓਏ ਭਾਈ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢ ਭਰਾਵਾ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਘਰ ਹੈ ਵੇ, ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢ ਉਮਰ ਬਾਪ ਨੂੰ। अच्छा उमेर बाब ये वही नहीं है ਭਰਾਵਾ जेड़ी ਤੇਰੀ पहले ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਘਰ ਹੈ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢ ਉਮਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼। गाला गालां कड्डो यार नजमा दे कोल जाके ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਖਸਮ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਜਮਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਨਜਮਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੰਨ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖੋ। ਸਾਂਝੀ ਰੰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਢ। ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ मैं- ਬੁੱਢੀ ਰੱਖੀ ਉਹ ਰੱਖ। उमेर बाब
देखो आप ब्लड प्रेशर की दवाई खा लो कि ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੂਤ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਾ ਲਾ, ਭਰ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਾ ਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਟਿਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਇੰਜੋਇੰਗ ਆਲ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦ ਆਇਆ। ਚਲੋ तुम सबको नंगा कर दिया, फिर भी तुम लोग को शर्म नहीं आते हैं गाली देने के लिए। एक औरत ने मैडम इब्राहिम को बड़ा दलील किया, नीचे तुम सबको नंगा कर दिया है, फिर भी तुम लोगों को शर्म नहीं आता। यहाँ आते हो 6 फिल्म चलाते हो, शर्म करो। ये एक औरत ने नहीं, ये अल्लाह पाक की तरफ से तुम लोगों को एक मार है ताकि तुम अपनी इस्लाह कर लो। अल्लाह के बंदो, ये इसलिए है। एक खातून वो एक बहन होती है, एक बेटी होती है, बीवी होती है, माँ होती है। कितना दर्जा है एक खातून का। कम वक्तो तुम लोगों ने वो काम किया, देखो तुम लोग सारे के सारे जलील और रुसवा हो गए, फिर भी तुम लोग को अब रुजू नहीं करते और अल्लाह से माजरत नहीं करते। अल्लाह से तौबा कर लो, तुम लोगों ने गलत किया हुआ है, मान जाओ मेरी इस बात को, नहीं तो मजीद जलील हो जाओगे। जिल्लत तुम लोग के मुकद्दर में है। एक खातून ने तुम सब पीर साहब इसको कहें मुझे बात करने दे। पीर साहब मेरा तुम्हें बात करने की कोई इजाजत नहीं है, तुम खलफ उठा के झूठ बोलते हो। यहाँ पर मूवी लगाओ, तुम्हें मैंने बता दिया, यहाँ पर मूवी लगाओ, यहाँ पर वो तस्वीरें लगाओ जो तुम्हारे पास है। इब्राहिम भाई, सवित्री तो जो तस्वीरें मैंने तुम्हें भेजी तो दे तेरी मैं तेरू कुत्ते नु किस तरह बोलन दवा? तू इथे तेरू बोलन, तू हलफ झूठा चुकिया, तेरू बोलन दवा इथे तस्वीर ला के सारा नंगापन तू तस्वीर ला इथे बोलन दी तेरू। ओए तस्वीर ते ला इब्राहिम, मारी हुन उमर बाप कहनी ला तस्वीर तेरी ते बड़े आंदे सपोर्ट ने, ला तस्वीर। उमर बाप एनु एंदी छितर मारो, एनु एंदी छितर मारो। मुझे बोल उम्मे साहब दियो 1 मिनट जरा, 1 मिनट दियो। की मुंह तो गंद पकड़ा है। गुंगेस्तान मत बने, इसको कहे मुझे बोलने दे, ओ पीर साहब इसको कहे मुझे बोलने दे, पीर साहब को भी इसको कहे मुझे बोलने दे। जो हलफ उठा के तस्वीरें लगानी है वो लगा, फिर बात कर। बिल्कुल। अब सुन, अब गुंगे शैतान मत बने, मुझे बोलने दे। मुखन्नस का साथ दे रहे हो आप, मुझे बोलने दो। तस्वीरें लगा यहाँ पर, मुखन्नस का साथ दे रहे हो। जो हलफ उठा के तूने कुरान उठा के जो कहा था वो यहाँ पूरा कर। मैंने तेरे मैसेज लगाए थे, इसको जी नीचे उतारे। काल्स भी लगा, वो काल बनाओगे तो नीचे उतारूंगा ना। अब मॉडरेटर मैं तुम्हें उतार दूंगा बट्टी, मैं तुम्हें उतार दूंगा बार बार मॉडरेटर का नाम लिया तो। ओ पीर साहब नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। मेरे बाप ये देख ले, पीर साहब मुझे देख ले। ना 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 ना, ये तलब मत कीजिए प्लीज। देखिए उमर अबाब साहिबा, देखिए जी, एक सेकंड पीर साहब, इसको जरा बड़ा कर दे। ये बड़ा कर लेता हूँ, मेरी इसको बड़ा करें पीर साहब। ये हो ही नहीं रहा। आप खुद ही कर पाएंगे ना, मैं तो थोड़ी कर पाऊंगा इसको। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ बड़ा। आप खुद कर पाएंगे इसको, हाँ किसी और को कर सकता हूँ बड़ा। हाँ उमर बाप आप खुद ही बड़ा कर सकती हो। हाँ वो खुद तो कर सकती है, इसमें दोहरा है नहीं। जी जी पीर साहब खुद। हाँ देखिए, मैं आपको कर सकता हूँ, आपको, लेकिन उमर अबाब सबको नहीं कर सकता। करना उमर बाप को करना है। मैं बता रहा हूँ, उनको मैं नहीं कर सकता, वो खुद कर सकती है। अच्छा पीर साहब आपकी आवाज डबल आ रही है, आप दोबारा आए वापस। मैं उतरने वालों में से नहीं हूँ, मैदान छोड़ के जाने वालों में से नहीं हूँ। और मेरी जान आपकी आवाज डबल आ रही है, ये देखे। आने दो, तीनों की आने दो यार, फिर ऐसे समझ नहीं ना आती क्या बात हो रही है। ये जी इब्राहिम के पढ़े अपना पीर साहब, मैंने आपको इब्राहिम की एक वो भेजी थी ऑडियो। ये जी पढ़े क्या लिखा हुआ इसने, पढ़े सब लोग पढ़े जरा। अस्सलाम अलैकुम इब्राहिम तनवीर, आपसे बात होती थी आपकी ब्रॉड पे, जब आप फ्री हो तो मेरी बात हो सकती है आपसे, ये मुझसे पूछ रहा है। अब जी अगला मैसेज सुने। आगे कहते हैं, मैंने आगे लिखा है उसे हूं, मैंने लिखा जी आपने वादा किया है मेरे साथ कि अब आप ये बात नहीं करेंगी प्लीज।
मैंने उनको भी बोल दिया है, अब वो भी कोई बात नहीं करेंगे। अगर आपने अपने वादे का लाज रखी तो आपको हर कदम पर इब्राहिम तनवीर का साथ खड़ा पाएंगी। ले जी, उसके बाद क्या फरमा रही हैं, आगे आ जाए। उसके बाद फरमा रही है, मैंने कहा, उससे बात जब कंप्लीट हुई, क्या था, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाय, जो आप जी मैं आपको ब्लॉक कर रही हूं, आप भी कर दे। यानी बात हो गई है, अब आप भी ब्लॉक कर दे, मैं भी कर रही हूं। अब ये मुझे कह रहे हैं कि आप ठीक बोल रही थी, यानी मैंने जितनी बातें इसके साथ की, कहता बिल्कुल ठीक कह रही थी, मुझे आपसे अब कोई बात नहीं करनी। ये मैं कह रही हूं कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। नहीं, अब मैंने उसे कहा था ब्लॉक करने का, था नहीं, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता, आप कर दे। अब ये देखें जी, इसने मुझे ब्लॉक नहीं किया, यू ब्लॉक दिस शख्स बिजनेस, मैंने इस बंदे को ब्लॉक कर दिया। अब ये कहता है हलफ उठा के कि उम्मे रुबाब मुझे ब्रॉडो पर अपना नंबर देती थी, डिफरेंट उसके अंदर, वहां जाकर मुझे कहती थी मुझसे बात करो। ये औरत इतनी बेगैरत है, ये मुझे कहती थी मैं बड़ी खूबसूरत हूं, मेरे बाल इतने लंबे हैं, मैं इस तरह हूं, मेरे साथ बात करो। ये इतनी गंदी औरत है कि मेरे साथ ऐसी, और इसने मुझे सेंड की अपनी तस्वीरें बहुत गंद करते हुए, नंगी तस्वीरें, और मैं हलफ उठा के ये बात कर रहा हूं, कलमा खाकर नहीं। अब आपके सामने मैंने इसका लगाया, अब मैं इसे कहती हूं कि तू लगा यहां पर, लेकिन वो इतने दिन आप लोगों के सामने हो गए इसको ये बकवास किए हुए, लेकिन ये मुजाहिद, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज की हिफाजत करने वाले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और दूसरों की पगड़ियां उठाने वाले, दूसरों पे तोहमतें लगाने वाले, दूसरों पे इल्जाम तराशी करने वाले, वो जो है वो करेंगे, है ना। ये आपके सामने, में से तो भाग गया। अब मैंने ये इसके मैसेजेस आपके सामने लगाए हैं, पीर साहब आप देख रहे थे। जी भाग गया, अब जैसे मैंने मैसेज लगाए हैं मोहसिन साहब, वो भाग गया है। वो कह रहे हैं पीर उसको उठाए एक दफा, इब्राहिम को। इब्राहिम है ही नहीं, नीचे भाग गया वो। चलो वो बैठा है, वो टाइम पे क्या उसने लिखा था अपनी आईडी का नाम, टाइम वाला, जो जिसने तस्वीर लगाई थी, मोहसिन फारूक साहब, उसको मैंने अपनी ब्रॉड पर लिया इतना गंद सुनने के बावजूद, और मैंने उसको टाइम दिया कि तुम्हें म्यूट है, सबसे पहले वो लगाओ फिर अगली बात करना, लेकिन ये कुत्ते ये बकवास करते हैं, ये झूठ बोलते हैं। जी मोहसिन फारूक साहब बात करें आप। सलाम अलैकुम उम्मे साहबा, उसको जरा उठाएं तो सही। ये जी आप उनको, आपकी माँ की गोद में बैठा है, जाके उठा ले। उमर बाबा इन्हें गंदी फिल्म चला देनी जे। नहीं अल्लाह की कसम। हाय 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 जी इनको बात करने देते ना, ये है ये टीम के जो है बंदे। एक तो उमर बाबा थले ला दे जिंदबाज बंदे नो। पीर साहब वो नीचे है ही नहीं, आप देख ले, बेशक पीर साहब आप मॉडरेटर हैं, आप देख ले। और मौसर को दे, मौसर को कोई बात नहीं, आप तो वो उनको तो बात करने दे, पता पड़े कि किस तरह के जो है। आप कहते हैं 6 फिल्म चला दी, 6 फिल्म। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। जी साहब जी। हजूर हम तो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं कि इब्राहिम को उठाया जाए। क्या है पीर वो आपकी माँ की गोद में बैठा है, उसको उठा के ले, और वहां से हम बुला लेते हैं। और मैडम आप उतारा क्यों है उसको? मैंने नहीं उतारा, उसकी बात खुद ही चले जाते हैं, इतनी बात क्या कि खुद ही उतर जाता है। क्या उसको बात, ये बात क्या कि खुद ही उतर जाता है, मैंने नहीं उतारा उसे। गंदी ला देना, मजा ना स्वाद। उनको बात तो करने दीजिए बहुत ही अच्छे अंदाज में। ये है काम कर रहे हैं, अपने आप को शो करते हैं, हम मुजाहिद हैं। आ गए हैं पीर साहब, आ गए हैं। जी आया मुजाहिद।
आ गया ये देख जी सर जी। अल्लाह की कसम मैं आप पीर साहब आपके साथ खड़ा हूँ, उम्मे बहन के साथ खड़ा हूँ। इस कुत्ते को उठाओ जो आपको गालियां दे रहा था। हमें आपके साथ की जरूरत नहीं है, आप इस चीज को छोड़ दें, हमें जरूरत नहीं है। वो भाग गया है, वो नीचे नहीं है। जैसे ही मैंने उसके मैसेज लगाए वो फरार हो गया। जी साहब अपना म्यूट कर दे, आवाज आ रही है डबल। नहीं करूंगा। ओ भाजी डबल आवाज आनी ਤੁਹਾਡੀ। वो तेनों की आने दो। उमर बाप हाँ जी जी, पांडा साहब तशरीफ लाए हैं जी। पांडा साहब, ਪਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਪਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ, ਪਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। जी पांडा साहब फरमाएं। अगर मेरी बात मान जाते मूसा भाईजान तो आज ये जिल्लत नहीं होती। तमाम टिकटॉक पे तुम लोगों को एक खातून ने सरे बाजार नंगा कर दिया, और ये उन्होंने नहीं किया, अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। आपने अपने आप को ऊपर समझा कि ये खातून है, हम दबा देंगे। देखे, लेकिन वहां जो हुक्म रद्द हो रहा है अल्लाह पाक का, उसकी वजह से तुम सब जलील और ख्वार और रुसवा हैं। आज सब तमाशा देख रहे हैं, और ये चलेगा, मजीद चलेगा। आप उमर क्या बाप करेंगे? साहब गालियां ही दोगे, लेकिन ये मजीद चलेगा। करते रहो, सिर्फ फतवे दो, झूठ बोलो, ये ऐसा है वो वैसा है, ये कादियानी नवाज है, इसकी माँ, उसकी बेटी, इसका बहन, यही करोगे पांडा ना। साहब, पांडा साहब जी, जी, करते रहो, अस्सलाम इससे तुम लोगों के माथे पर कलंक है, कलंक। अच्छा याद पांडा साहब रखेगी की दुनिया सुन ले। तुम लोगों को, जो तुम लोग कर रहे हो। कुछ हया करो, कुछ शर्म करो, और अल्लाह के हुक्म को बुलंद करो, उसको मानो, उसकी तरफ आ जाओ बदबख्तो। माशाल्लाह माशाल्लाह, फखरे गोहर फखरे नयाब हमारे नवाज गोहर भाई तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह व बिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। मैं सदके जावां चंद कितो चढ़े आज। ਤੇ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਤੇ ਯਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਮਦਦ। ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਾ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਰੋਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਖਰੇ ਗੋਹਰ ਹੋ, ਸਖਰਾ ਫਖਰੇ ਨयाब ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਮੌਲਾ गोहरे नयाब हमारा भाई है ये। ਤੁਹਾਡੇ क्या मसला बना हुआ है आप लोगों का? मैं एक दो दफा ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਾਝੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਧਰੋਂ ਮਗਰਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਜਾਣਾ ਇਨਬਾਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਰੋਡ ਤੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਬਰੋਡ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੋਡ ਤੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਤੇ ਕਰਵਾ। ਇਨਬਾਕਸ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਰਫ ਮੈਨੂੰ ਕਰਵਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੈਰ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਟੈਪ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਫਟਾਫਟ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਰੋਡ ਖੁੱਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਬੰਦਾ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ, ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਨਾ ਆਖੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਰਜ਼ਈ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਔਰ ਗਲੀਜ਼ ਕੌਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ,
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਈ ਆਖੇ ਜੀ ਅਲੀ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ को ਨੰਗਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, کہ جی میں اس عورت کو ننگا کروں گا، علی کی سنت ہے، علی کی سنت پر عمل کروں گا، اس طرح میں کیا پھر مینوں وہی الفاظ وہ دے کہ جی علی نے کیا کہ اس طرح میں کہا گل سن میری، ٹھیک ہے، علی کوئی جڑا نا کوئی ایویں معمولی بندہ نہیں ہے جی تو گل کردا پیا، ٹھیک ہے، اللہ نے انہاں دی سند طیب اور طاہر ہون دی اتاری ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں کہا بھی میں اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ تو دوسری گل یہ آخر جی ٹھہرو میں تمہیں بخانا، میں کیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، ٹھیک ہے، وقت دے اتنے اپنے نماز دی ادائیگی کرو، مغرب دی اذان ہو گئی ہے، میں نماز پڑھنی تو بھی پڑھ نماز، ٹھیک ہے، تو بھی نماز پڑھ تو میں بھی نماز پڑھا، نہیں جی نہیں تسی ٹھہرو جی ٹھہرو، میں کہ نہیں میں نا چھڈ کے نا بند کر کے چلا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ مینوں اس گل کی سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے جی، میں سوری میں دوستاں دے کول کرنا کہ میں پنجابی چ گل کردا پیا وا، ٹھیک ہے جی، تو بندہ وہی سی، ٹھیک ہے نا جی، ہاں نا کدے لئی لینا، بندہ وہی سی جی وہ ریکارڈ چلی سی، ٹھیک ہے، تھلے بھی ذکر ہون ڈیا ہے۔ تو مطلب یہ سی کہ اس نے مینوں نا قائل کرنے کی کوشش کی، تو میں انہوں کہا میں کہ بھئی یار اس طرح نہیں، میں انہوں چنگا نا مطلب اس نے جواب دیتا۔ تو گل یہ کہ ایک اصول ہوندا ہے، دیکھو اسی گھر دے وچ ساڈیاں ماواں بھی آ، بھیناں بھی آ، بیٹیاں بھی آ، ٹھیک ہے، سانوں اپنے پہلے اپنے گھر دے اتنے نظر کرنی چاہیے ہے، ٹھیک ہے، اپنی منجی تھلے ڈنگوری پھیرنی چاہیے ہے، پھر سانوں گل کرنی چاہیے ہے۔ پھر انہیں یہ بھی گل کی کہ ادھر تواڈے میاں دی گل کی، میں کہ بھی میاں نوں تو انہوں نے چھڑ دیتا، ٹھیک ہے، علیحدگی اختیار کر لی، یہ بھی انہوں نے براڑ تے ہی دسیا سی، ٹھیک ہے، انہوں نے اتوں علیحدگی اختیار کر لی، ہوں وہ کی کرے، ٹھیک ہے، آخر جی تسی ادے دیکھو اتنے دیکھو، تو میں کیا گل سن میری دوست میرے، جڑا کسے نوں فرولی دا نہیں ہوندا، کسے دی پرائیویسی جڑی نا وہ انٹرپٹ نہیں کری دا، انٹرپشن نہیں کری دی، ٹھیک ہے نا، ہر کسے دا اپنا فیل ہے، ہر کسے دی اپنی پرائیویسی ہے، میری اپنی پرائیویسی ہے، میں کسے نوں اجازت نہیں دیاں گا کہ میری پرائیویسی دے وچ کوئی انٹرپٹ کرے، ٹھیک ہے نا۔ خیر اینی ہاؤ ہوں جنرل گل یہ کیا کردا، ہوں بھی میں ناصر اکرم صاحب دے براڈ تے سی یہ گل کرتے پے ساں، ٹھیک ہے، کہ ہوں جڑا نہ تو ساڈے دے وچ حیا رہا، نہ ساڈے وچ شرم رہی، نہ ساڈے وچ کوئی اخلاق رہا، نہ ساڈے وچ کوئی تمیز رہی، ٹھیک ہے، پرلے درجے دے اسی بدتمیز، بد اخلاق، ٹھیک ہے، بد گو ہے جی، تے یعنی جن بھی سب کے لا کے بے دے نال رلدے ہیں نا، بے شرم بے حیا، ساریاں چیزاں ساڈے وچ آ گئی ہیں۔ ہلو تھوڑے تے فتوا آ گیا تھلے؟ کوئی گل نہیں، آ گیا جی، فتوی دی میں ایک جنرل گل کردا، مینوں دیکھو وہ کی کہہ رہے یہ خود قادیانی ہے، کوئی بات نہیں، مطلب ہوں تسی یہ تو اندازہ لا لو کہ انہاں لوگوں کو کوئی خدا دا خوف ہے، انہاں نوں کوئی اللہ دا ڈر ہے؟ میری گل سنو، پنجابی دے وچ کہندے آ کہ کاواں دے آکھے ٹھگے بھی مرے کدی، جی ٹھیک ہے نا، میں ہن پنجابی چ گفتگو کردا پیا واں، کاواں دے آکھے ٹھگے نہیں مرے، مینوں کوئی اچھا پہلے تو اس بندے نے مینوں آدے پوچھا جی تہاڈا مذہب کی ہے، تسی بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، کی ہو، میں کہ میں کچھ بھی نہیں، قرآن کہندا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، ٹھیک ہے، اللہ دی رسی نو مضبوطی نہ گھٹ لو، گھٹ کے پھڑ لو تو پھر بندی نہ کرو۔ یہ بندہ قادیانی نہیں ہے، اس کو میں جانتا ہوں، قادیانی تو بڑی گندی اور خنزیر قوم ہے،
अच्छा तो गल ये वे ऐसे लग रहा देखो है जैसे आपकी माँ हीरा मंडी में गई थी तो आप पैदा हो गए हैं उधर। नहीं देखो सॉरी सर, मैं अगर ये आप मेरी बात अंकल गोहर ये जो मेरे नीचे बैठा है ये हीरा मंडी की या पैदाइश है ये नहीं माता जो है नहीं ना नहीं वो हीरा सुनो मंडी गई थी तो लेने वो मदा गई थी तो लेकिन ये हमल हो मेरे गया भाई देखे उनको बात करने दे, बात करने मेरे दे। भाई इसको मैं नीचे चला कर इस जाऊंगा, गंदे को। मैं फिर चला जाऊंगा, मेरी बात सुन लो 2 मिनट तसल्ली के साथ। नीचे नीचे को ना देखो, आप ऊपर को देखो, अल्लाह की तरफ देखो, नीचे को ना देखो। अंकल नवाज ठीक के है? ऊपर भी बैठा है एक, ऊपर भी बैठा है। कोई बात नहीं। देखे जो हांडी च हुंदा ना ਉਹ ਡੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ये भाई बट्टी जो है कादियानी है पता है ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਭੈਣ ਵਿਆਹ ਲੋ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆੜੀ ਨੇ ਭੱਟੀ ਨਾਲ ਭੱਟੀ ਦੇ ਯਾਰ ਜਾਓ ਭੈਣ ਮੈਂ ਯਾਰ आप तो ਚੱਲਿਆ कादियानी को पसंद ਮੈਂ नहीं ਚੱਲਿਆ करते भाई। नहीं मैं ਚੱਲਿਆ ਵੀ सॉरी मैं बेशक थल्ले सुट दो या मैं आप चला जाना चले गल गए है भाई, होने चले गए। यार ये मुजाहिदीन है बैठे हुए। नवाज भाई आप मुसलमान आ गए हैं ना, आप कादियानियों में नहीं बैठे, मुसलमानों में बैठे। एक पावन मुसलमान है, आपका भाई जो एक अहमदिया मुसलमान है जी, मुसलमानों में बैठिए आप। हाँ जी बाबा साहब दे दो भैन जी उमा दीन के मुहाफिज है नवाज साहब, आप इनमें 2 मिनट नहीं बैठे। के मानने वाला नहीं है। गूगल को म्यूट लगाए ना आप, म्यूट करे मेरी ताकि बात हो सके, आप इनको म्यूट करें थोड़ा। सुनेंगे मैं सुनूंगा सर, मैं सुनूंगा, मैं हाजिर हूँ सब दोस्तों के लिए, मैं हाजिर हूँ। माशाल्लाह, आप कादियानियों के दरमियान गिले कर रहे हैं। कादियानी बैठे हुए हैं यहाँ पर। कोई बात नहीं ये जो तुम्हारा ये यार, मैंने कहा ये शामिल रसूल है। मेरे अगर दोस्त आप मुसलमान हो तो हेलो ओ मेरे प्यारे हो, मैनू गल ये कर शर्त लैण नहीं है बेटे। दो यार, मेरी मैनू गल कर लैण दो। करो 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 गल करो करो। देखें आप देखिए ब्रॉड में मिर्जा गुलाम खंजीर का नारा लगा रहे थे, गलत कह रहे हैं ना आप, क्यों नहीं मैनू फतवे ना पूछो, मैं मुफ्ती नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਪੜੇ ਚ ਮੁਫਤੀ ਬਥੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਥੋੜੇ ਮੁਫਤੀ ਆ, ਇੱਟ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ, ਤਕਰੀਮ ਕਰੋਗੇ, ਤਹਿਰੀਮ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। अस्सलाम वालेकुम, मुँह में बाजी आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम जी, आ रही। नवाज साहब मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैंने बात करनी है। उम्मे सिस्टर क्या हाल है आपका, ठीक है? पार्टनर साहब उनकी बात कंप्लीट होने दे फिर आप बात कीजिएगा। उम्मे सिस्टर मैंने जाना था, सिर्फ मैं आपके लिए स्पेशल आया हूँ, सिर्फ 2 यार मिनट। ये सारे जो बोलना तो फिर मैनू गल उनकी बात कंप्लीट होने दे, थोड़ी सी बात रह गई उनकी जी, थोड़ी सी बात रह गई। मैं बस आखिरी बात यही करूँगा, ठीक है। आई एम नॉट फाउंड ऑफ टू डिस्कस एनी बॉडी, ठीक है जी, मुझे कोई शौक नहीं है। बात सिर्फ कहूँगा, अल्लाह के नबी का फरमान है, सिबाबुल मुस्लिम फसूकुन व क़ितालुहु कुफ्र। किसी मुसलमान का मुसलमान को गाली देना फिस्क है, फिस्क व फजूर है, और उसका कत्ल जो है वो कुफ्र है। बस अक्लमंद इशारा काफ़ी है, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। नवाज भाई बहुत आपके आने का शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, और आप जैसे लोग जो हैं वो दीन का भी और इस्लाम का और पाकिस्तान का सरमाया है। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी और सेहत और हमेशा ईमान पे कायम रखे। ये बात कहूँगा, मैं जब 1.5-2 साल पहले ब्रॉड पर आई हूँ नवाज भाई, जी तो मैंने एक बात अपने वालिद साहब की बात पे ना ध्यान नहीं दिया था, जी ठीक है। मेरे वालिद साहब बहुत ही माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जिंदगी सेहत और ईमान जो है वो नसीब फरमाए। मैंने एक अचानक मैं आई हूँ, ये जमाते अहमदिया के साथ मेरी बातचीत हुई और उन्होंने मुझे लेना शुरू कर दिया अपने मुनाजरों में। तो मैंने एक मुनाजरे का क्लिप जो था वो मैंने अपने वालिद साहब को भेजा। अच्छा, तो मेरे वालिद साहब ने सुना तो मेरी बातचीत सुन के तो बड़ा खुश हुए, जी और मेरी छोटी बहन को बाद में कहने लगे कि
یہ ختم نبوت کا جو کام ہے نا یہ بیٹا ایسے نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو تعلیمات دیں, آپ لوگوں کو اویئر کریں. یہ ختم نبوت کا نام پہ جو لوگ نکلے یہ بہت خطرناک ہیں اور ان کے اندر کوئی انسانیت نہیں ہے, یہ ایک ڈھونگ ہے. آپ نے ختم نبوت کا کام کرنا ہے, تبلیغ کریں اللہ تعالیٰ کے دین کی, ان کو سمجھ آئے گی وہ خود بخود ختم نبوت کو مان لیں گے. یہ جن لوگوں میں جا کے بیٹھی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور میں نے ان کی بات پہ دھیان نہیں دیا. میں نے 2 سال ان لوگوں کی باتوں کو دھیان دیا, میں نے ان کا انالیسس کیا, میں نے ان کے معیار کو دیکھا, میں نے ان کے تعلیمی معیار کو دیکھا, میں نے ان کی بات چیت کو اسیس کیا. 2 سال تک میرا انالیسس مدد کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور ادھر ایک نام نہاد مجاہد ہے اور دوسری طرف ایک کتا ہے. آپ نے ایک کا انتخاب کرنا ہے, کسی کتے کا انتخاب کر لینا نام نہاد مجاہد کرنا. یہ میرا انالیسس تھا 2 سال. غلام قادیانی کہہ لے کتے کی جگہ. اچھا میں بھائی اجازت ہے, میرے پاس صرف 5 منٹ کیونکہ یہاں پہ 2:30 بج رہے ہیں رات کے. جی پڑھا بھائی. جی میں بھائی میں 2-3 دن سے آ رہا ہوں. یہ جو ہے سندھو جاٹا کھوتی کا بچہ, میں سر 2-3 دن ہو گئے ہیں مجھے آتے ہوئے نا ابھی. جی جی میں کیونکہ آ نہیں رہا تھا, آپ کو پتا ہے میں تو ابھی 2-3 دن ہوئے آ رہا ہوں, تو میں نے 2-3 دن کنورسیشن سنی آپ کی بھی اور ادھر بھی, مطلب سن رہا ہوں. مجھے معاملہ تو نہیں پتا کہ آپ کا کیا معاملہ بنا ہے آپس میں, لیکن اس معاملے کو یہ ہے کہ قادیانیوں کے پاس لے کے جانا وہ تو ٹھیک نہیں ہے. آپ لوگ آپس میں اس مسئلے کو جلدی سے جلدی حل کر کے یہ کس نے قادیانیوں کے پاس لے کر گیا ہے اس معاملے کو؟ آپ لے کر گئے بھائی جان؟ زاہد اسکانی صاحب آپ سے تو میں بات کرتا ہوں نا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں کون لے کر گیا؟ ایک منٹ بات بتائیں. یہ خامخواہ کے بتان تراشی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ قادیانی کیا ہے ہمارے لیے؟ کچھ بھی نہیں. جی زاہد بھائی ایک منٹ. نہیں عمر اباب صاحبہ مجھے یہ بتائیے, قادیانیوں کے پاس یہ حضرت لے کر گئے؟ زاہد اسکانی صاحب آپ سے تو میں علیحدہ سے بات کر رہا ہوں نا, بات سنیے. زاہد اسکانی صاحب آپ اپنی ایک حرکت سے باز آ جائے, آپ پاکستان کا نام بدنام کرنا چھوڑ دیں. ضرورت نہیں ہے. زاہد بھائی ایک منٹ ذرا, بس آتے ہی شروع ہو جاتے قادیانی کے پاس. پاٹا صاحب کیا سمجھتے ہیں پاٹا صاحب؟ ایک منٹ زاہد بھائی, ایک منٹ, سوری. پاٹا صاحب مجھے ایک بات کا جواب دے. 2 سال سے آپ براڈو پہ ہے, جتنی گالی گلوچ, جتنا گد 2 سالوں سے بول رہی ہے, مجھے یہ بتائے کہ قادیانیوں کی آنکھیں بند ہیں؟ نہیں بالکل بند نہیں ہے, انہیں نظر آتا ہے. قادیانیوں کی زبانیں بند ہیں؟ نہیں. قادیانیوں کی منہ بند ہیں؟ قادیانی ان براڈوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ دیکھتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں اس چیز کا. اب ایک مجاہد اٹھ کے طلت قادیانی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. اب قادیانی کی براڈ پہ جا کر جب وہ میرے پہ تہمت لگائے گا تو قادیانی مجھے بلائیں گے, مجھ سے پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے؟ بالکل پوچھیں گے, حقیقت وہ تو اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے. یہاں پر رباب کسی قادیانی کے پاس نہیں گئی. ان کا ایک مجاہد جو اپنی 13 سالہ بھانجی وہ تو جاہل ہے نا, اس کو تو میں جانتا ہوں, وہ جاہل ہے, اس کو چھوڑ دیں, اس کو میں جانتا ہوں وہ جاہل ہے. اس کو اب اس بات کو لے کر کون گیا؟ مجاہد صاحب. اس کے پاس کون گیا؟ بنی اسرائیل کے پاس مجاہد صاحب. جب انہوں نے مجھے بلایا تو میں نے جا کر وہاں پر بات کی. اب یہ جو مجاہد ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں وہ کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا. یہ جو مجاہدین ہیں جب یہ دن رات گالیاں نکالتے ہیں یا گستاخیاں کرتے ہیں تو اگلے بندے مجھے بلاتی ہیں کہ عمر وہاں اس چیز کا جواب دے. پھر میں وہاں جواب دے ہوں یا نہیں ہوں, بتائے مجھے. نہیں وہ تو دینا, اپنی کلیریفیکیشن تو کرنی ہے, وہ تو ضروری ہے. ایگزیکٹلی میں اپنی کلیریفیکیشن کے لیے گئی ہوں, کلیریفیکیشن کے لیے, اور وہاں پر جا کر جب یہ بات ان کی طرف سے ہو چکی ہوتی, وہ بلاتے کہ آئے بھی اس چیز کا جواب دے, تو میں گئی ہوں. اب مجھے میرا قصور بتائی. نہیں پھر آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ میں 2 دن سے یہی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا یہ کیا معاملہ ہے. اس بندے کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ تو جاہل ہے, اسے تو نہیں پتا. بات کرنے کے بعد اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے, کتنی بڑی عظیم ہستی کے بارے میں. ایک منٹ ٹھہر جاؤ, مجھے پاڈا سے بات کرنے تو. بہت دنوں کے بعد میرا بھائی آیا ہے. پاڈا صاحب, ایک آدمی ابراہیم نام کا, ٹھیک ہے, اس نے
उसने हलफ उठाया, कहता जी मैं कलमा नहीं उठाता, मैं कुरान करीम उठाकर ये बात कहूंगा कि मैं जो बात कहूंगा वो बिल्कुल सच कहूंगा। कहता उम्मे रुबाब ने 20 आईडियों से मुझे अप्रोच किया और मुझे कहने लगी कि मैं बहुत हसीन हूं, मुझसे बात करो। और जब उसने मुझसे बात की और उसने अपनी गंदी वीडियोस मुझे भेजी, मुझे नंगी तस्वीरें भेजी जो मेरे पास आज भी मौजूद है, और उसने और भी बहुत सारी गंदी बातें की। सिस्टर छोड़ दे, मुझे सारी बातों का पता है, उन वाली सारी बातों का एक मिनट नवाज साहब, एक मिनट। अब मैं उस बंदे को, वो मेरी ब्रॉड पर, मैंने एक कादियानी ने उसकी ये वीडियो लगाई हुई थी, जो उसने बोली थी वो रिकॉर्डिंग लगाई हुई थी, और उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया। उन्होंने कहा कि मेरे बाप आप कुरान और हदीस की बात करती है तो इसका क्या मतलब है, ये बात क्या है। मैंने उसके मैसेज जैसे आज अपने ब्रॉड पे लगाई है, मैंने उसके मैसेजेस दिए और मैंने एंड के ऊपर उसको ब्लॉक किया हुआ था, और मैंने कहा मैंने आपकी बात सुन ली, आप जो कहना चाहते थे। अब ये है कि मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। नहीं उम्मे सिस्टर, आप अपना काम अच्छा रखें, माशाल्लाह आपका काम अच्छा जा रहा था, आप उसी तरह रहे, आप अपना काम माशाल्लाह से अच्छा कर रही थी, वो उसी तरह करें। और ये जाहिद अस्कानी साहब को सिर्फ आप इंसान बना लें, क्योंकि इनकी मैंने कल कन्वर्सेशन सुनी है, ये निशाने हैदर को कह रहे होते हैं जैसे कोई आम सी चीज है, पाकिस्तानियों को गाली दे रहे होते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर ये किसी हमारे पाकिस्तान को गाली दे रहे होंगे या किसी चीज को दे रहे होंगे ना, तो ये चाहे बलूचिस्तान में बैठे हों या ईरान में बैठे हों, इनको मैं अच्छी तरह देख लूंगा। पांडा जी मुझे ये बताएं, आप मेरे पास आते थे, हम लोग इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे हम लोग काम करते थे, हमारे पास काज़मी साहब भी, हसन मतलब आता था, कितना अच्छा हम लोग कुरान और हदीस के ऊपर बात करते थे। अच्छा, अब आपने देखे कि मैं आज तौहीद और तसव्वुफ के ऊपर मैं बात कर रही थी। मैंने कुरान करीम की सूरत हशर की आयत पढ़ी। पीर साहब एक मिनट, पीर साहब सूरत हशर की आयत पढ़ी, इन्होंने आके वो गंद बोला कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। हाँ, अब थोड़ा सा मुझे मौका दे दीजिए। ये जो हजरत कह रहे हैं ना कि कादियानियों के पास आप लोग आए हो, भाई क्या हैसियत है आपकी हमें ये कहने वाले? आप कौन हो हमारे? अस्कानी साहब बात सुने मेरी, मैंने ये बात क्लियर कर ली ना, उम्मे सिस्टर ने मुझे क्लियर कर दी, ना, मेरी जो गलत फहमी थी वो खत्म होगी, उन्होंने मुझे बात, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, अगर खत्म होगी तो अच्छी बात है। हाँ तो बस ठीक हो गया, मेरे ज़हन में यही था शायद, है ना, जो नजर आ रहा है उसी तरह है। हमें मेरी बात सुन लीजिए ना भाई, अगर आप मुसलमान हैं, आप हमारे भाई हैं, हमें आपकी भी जो है मदद नहीं चाहिए। सर मैं आपका भाई नहीं हूँ, माजरत, मैं आपका भाई नहीं हूँ, ठीक है। आपने कल जो मेरे मुल्क के बारे में और मेरे निशाने हैदरों के बारे में जो बात की ना, उस बारे में मैं आपका भाई नहीं हूँ। पीर साहब मुझे भी मौका दे दे बात करने का। मैं आपको मौका दे देता हूँ, एक मिनट मुझे, एक मिनट भाई, एक मिनट हजरत, साहब ये आपकी भूल है, ये आपकी भूल है कि मैं कुछ कर नहीं, मैं मेरे जूते को भी, आप मेरे जूते को भी हिला नहीं सकते। चलो अस्कानी साहब इतना दम है ना, फिर कर लो ट्राई मेरे साथ, मैं भी बैठा हूँ, ठीक है पाकिस्तान में। डंडा दे दूं तुझे? हाँ मैं देख लेता हूँ ना, जितना तुम बहादुर हो देख लेता हूँ मैं तुम्हें। ये बताओ क्या कर लूं? किधर बैठे हो बताओ, दो नंबर मैं तेरे घर में देख लेता हूँ मैं तुम्हें। अपने घर में बैठा हूँ। नहीं दो ना, पर नेक्स्ट टाइम अगर तुमने पाकिस्तान के बारे में बात की ना, तो मैं तुम्हें उठा के ऐसी जूतियां मारूंगा, याद रखोगे। मेरी बात सुनो, तुम्हारा सिर्फ काम है, तुम्हारा सिर्फ काम है कि पाकिस्तान में बारे में बात की। नहीं उम्मे सिस्टर देखें, मेरे लिए जैसे गंदे इंसान है, लेकिन मेरा मुल्क भी है ना मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है, ठीक है ना। मुल्क के बारे में होने दीजिए। पीर साहब ने कभी, मैंने उनकी जुबान से, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए मोहतरमा। उमर अबाब साहब है, मोरे मुझे अपनी बात करने दीजिए। मुझे क्या जरूरत है पाकिस्तान के बारे में बात करने की? मैं पागल हूँ? मैं तेरे जैसों को जूता मारूंगा अगर गाली मुझे दोगे। मुझे क्या जरूरत है? तेरे जैसे की बात आई ना, मैं गाली पहली बात तो मैं सिस्टर जानती है, मैं गाली देता नहीं, ठीक है। अगर आप मुझे गाली दोगे मैं तुमको जूता मारूंगा। मुझे क्या जरूरत है तेरे मुल्क के बारे में बात करने की? तू पागल है? उधर के निशाने हैदर, अजीब इंसान है का मतलब समझते हैं। मैं बताता हूँ, मैंने ये कहा तुम लोगों को की जो है वो आदत है, निशान हैदर है गाली देना, क्योंकि तुम लोग गाली देते हो। बड़ी अच्छी बात। हाँ तो निशान हैदर का मतलब समझते हैं किसको दिया जाता है? शहीद को दिया जाता है। तुम नहीं, आप गाली देने वाले को शहीद कह रहे हैं जैसे। हाँ, आप तुम गाली क्यों देते हो फिर?
को किसने अगर दी? मैंने इतने दी अच्छे आपको? लोग हो, नहीं, मैंने गाली दी? तो तुमने मैंने कहा था, नहीं, मैंने गाली दी? तो या तुमने मेरे मैंने किसी कहा था, हवाले में बिल्कुल सही कह रही किसी है। ने गाली दी? पांडा सही तुमने- कह रही तुमको है कहा कि था मैंने। उसका मतलब है कि जो शहादत तुमको में मैंने कहा था, सबसे ये बोलो। अजीम निशान है वो निशानी हैदर है, ठीक है? हाँ। जिनको तो मिला तुम लोगों की अजीम वो निशानी क्या है? मतलब गाली देना। अजीम तरीन शख्सियत जिनको वो आप उनको मिला। गालियों वाला कुछ दें ना। आप ये आप गाली बोलो बात- कि मैं ये जो को दिया मेरे हुआ है। मुंह में आएगा कहूंगा, तू मुझे रोक नहीं सकता। गाली बस पहले फिर मैं गाली रोक के देने दिखा वालों दूंगा, को- मैं रोक सकता हूँ। फिर मुझे में इतना दम है, मैं रोक सकता हूँ। पीर ठीक है साहब ना? देखिए, तुमने आप इस चीज को एक समझे। जरा भी मेरे बाल बीका करने की जो है वो तुम्हें ताकत नहीं है। सिर्फ गाली दे सकते हो, गाली सिर्फ। नहीं नहीं, गाली तो मैंने दी नहीं है। आप मुझे नंबर दो, मैं देखना गाली दिए बगैर अगर आपका काम ना करूं तो बात है। गारंटी नंबर देता किस हूँ। लिए तुझे, नंबर किस लिए दे दूं? मेरे भाइयों क्यों आपस में, मैं पागल हूँ क्यों तुम्हारी आपस तरह? में शूट करना है आपको, इसलिए नंबर मांग रहा है वो। पागल हूँ तुम लोग, भाई, चचोरे हो। मेरे भाइयों, तो चचोरों माओ को जो यहाँ आपस रोड में। पे बात करके बात खत्म। मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दे बात करने चचोरों की, का सिर्फ क्या 1 है? मिनट। ये दे दो, वो दे दो। अगर तुम लोग वाकईतन इज्जतदार होते, शरीफ होते, तो किसी को गाली नहीं देते, किसी को कुफर के फतवे नहीं देते। तुम लोगों की मेरे पास 3-3 घंटे की गालियां मौजूद हैं और फतवे मौजूद हैं। नहीं, तुम लोग मैंने जानवर कौन सी हो। आपको गाली दी या मैंने कौन सा फतवा लगाया ये तो बताओ। तुमको मैंने कब कहा है? नहीं मैंने तो उनको- बात सुनो ना। मैंने- आपको क्या लगता है हमारे घर में कोई निशाने हैदर नहीं होगा या हमारे घर में कोई ऐसा नहीं भाई होगा? तेरे घर आपने में गाली जो देने भी वाले है, को निशाने आपको हैदर के मुबारक दिए हो। सीधा। आपको मुबारक हो भाई, अल्लाह आपको इज्जत अस्कानी दे। साहब, आप अपने लफ्ज है ना उनके लिए वो इस्तेमाल करें जो वो डिजर्व मैं करते अपने हैं। लफ्ज, अगर आप मेरे माँ को गाली दोगे, मेरे बहन को गाली तो दोगे, आप जो उनको दो लफ्ज ना, पे आप आएंगे उनकी मैं माँ दूंगा। बहन को दो। आप दूसरों को मैं क्यों बीच में चचोरा डाल नहीं रहे हो? हूँ, मैं चचोरा नहीं हूँ। नहीं मैं तो उनके फिर आप बहन दूसरों बेटियों को को क्यों गाली लेके दूंगा। आ रहे हो? जिसने मैं आपको गाली आपको नहीं तो दी, कहा आप उसको नहीं भी है। ये बीच में डाल रहे हो। भाई मैंने आपको तो कहा नहीं है, मैंने उसको कहा है जिन्होंने मेरे बहन बेटियों को गाली दे दी। 3-3, 4-4 घंटे की रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। मैंने तो भाई उन यही मैं जानवरों को बात कहा कर रहा हूँ ना, आप उनको दो। आप ओवरऑल मैं एक उनको तमके कह को रहा हूँ उठा ना, के तुम्हें सब तो पे नहीं कह मुसल्लत ना करो ना। भाई आप अगर आए हैं उनका दिफा करने के लिए तो मेरी नहीं, मैं जो- उनका दिफा करने नहीं आया। मेरा तो उनसे फिर कोई खत्म हो गया। अल्लाह माफ मेरा करे और उनके आपका साथ कोई मेरी झगड़ा कोई है ना, नहीं वो है। नहीं है। मैं आपको मेरा बात वो आपका कर रहा हूँ कोई जो झगड़ा नहीं हकीकत है। है। जिन्होंने गालियां दी हैं हमें, हाँ, मैंने फतवे कहा है ना, दिए जिन्होंने हमें, आपको गाली दी आप उनको जो दो गाली। चाहे मेरे हम ख्याल से कह मुझे दें। क्या फर्क पड़ता है? तो पर खत्म हो गई ना भाई, आप क्यों हाँ। बीच में आए हुए हैं? यार क्या मैं ये कर दूंगा, अस्कानी वो साहब, कर आप दूंगा? बात नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ आप उनको तू बेशक जो है गाली अपने दो, साये लेकिन से आप डरने ये वाले लकब क्या तो ना दो करोगे? ना उनको। आप ये लकब ना अपने दो। साये, अगर आप एक इज्जतदार होते ना भाई, तो आप ये गालियों को बंद करते, इन बदतमीजियों यार को मैंने बंद थोड़ी दी है या मेरे कहने से आकर- बंद थोड़ी हो आकर जाएंगी हमें गालियां। धमकियां नहीं मैं सिर्फ देते, एक ये बात दे दो, बताइए, ये मैं दे किसी दो, का मैं कर मुंह दूंगा। रोक सकता हूँ गाली देने से? तो हमें रोक सकते हो? तो आप उनको बात सुने, आप उनको गाली दे, मैंने कब कहा कि ना दे। आप मैं उनको उनके चचोरा हूं कि तरीके से उनको जवाब गाली दे, दे दूं? लेकिन आप मैं एक वहां चीज अटैक पूरे करूंगा ना, पाकिस्तान पे तो ना जिससे लगाए ना। उसकी जो है उसकी जान निकले। मैं गाली क्यों उसको दे दूं? आप पीर उनके ऊपर साहब, अटैक आप करें पांडा ना। साहब की बात को नहीं समझते। अजीब वो ये कह रही अजीब है, बात। पीर साहब 1 मिनट, जी वो ये कह रही है कि हमारे मुल्क में निशान हैदर का जो एजाज है, वो जो बड़े टॉप के मतलब शहादत जिनकी और जिनको बहुत मतलब आला समझा जाता है, उनके लिए ये एक इससे बड़ा कोई निशान और है नहीं। आप ऐसे लोगों के साथ बात करके निशान हैदर की तौहीन करें, वो जो ना करे, वो ये कह रही है। नहीं, मैं निशान हैदर की तौहीद नहीं कर रहा। ये इंसान समझदार नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो गालीबाजो, तुम लोग गाली देने को निशान हैदर समझते हो, दो। ये मैंने कहा, अभी भी कहूंगा, जो गाली देगा उसको यही निशान कहूंगा। हैदर जो है ना, वो एक बहादुर, एक अजीम शख्स की अलामत है। तो ये बहादुरी गाली देने को गालीबाजों की बहादुरी नहीं नहीं है, समझते? वो ये बता रहे हैं। गाली देने को बहादुरी नहीं समझते ये? गाली यही देने को समझते- ये बहादुरी नहीं समझते ना। वो तो कहते हैं कि गाली का बदले में आप जो मर्जी उनके साथ करो, नहीं, लेकिन जो उनको गाली इस दे- निशान के साथ ना नवाजो, वो ये कह रही जो है। गाली दे रहे हैं वो तो ये समझते हैं हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, हम बड़े बहादुर हैं, हम बड़े ताकतमंद हैं, यही समझते हैं ना। सिस्टर आप समझ गए माशाल्लाह से। अस्कानी साहब को मैंने- शायद समझ नहीं आनी, आप ही मैं समझ नहीं सकती समझूंगा हैं। इसमें। ओ भाईजान, आप भी प्यार से बात करो। जो मैं भी आपने- मुझे आपने गाली पीर साहब देगा, को धमकी लगा मैं दी है। जैसे चाहूंगा उसका अपना जवाब दूंगा। नहीं, आपसे उम्मे खत सिस्टर को लेकर समझ आ लिखवा कर नहीं गई। लूंगा। मेरा लिंक उनके साथ था, मैंने उनको बात समझ आ गई, बस काफी है। देखो आपने भाई भाइयों, धमकी क्यों दी जिनको है समझ पीर आ गई साहब अच्छी को? बात है, मेरी बात अगर आप समझ जाए तब भी अच्छी बात है, नहीं समझे तब भी कोई मसला नहीं। जी पीर साहब, आप समझाएं, आप करें यार बात। कोई पांडा जी, बात आप नहीं। बात- देखिए, मैं ये इग्नोर कहता हूँ, करो। मैं ये कहता हूँ ना कि ये एक बहुत बड़ा चिचोरापन है। उसने तुमको गाली दी, तुम उसको गाली दो।
तुम कौन हो मुझे समझाने वाले? पहले उसको कहो तुमने बेगैरत गाली क्यों दी? तुमने गाली दी, देखो उसने क्या कहा। नहीं, अगर एक आपको कुत्ता काट ले, आप कुत्ते को काट लेंगे, ये करेंगे? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। वो अच्छा, कहते, तुम कहते हो उसको गाली दो, मैं क्यों ये गाली नहीं दूं? करेंगे आप, मैं ये जो नहीं करेंगे, चाहूं कुत्ते उसको को नहीं समझाऊं। काटेंगे, लेकिन आप है ना कुत्ते को है ना फिर पकड़ के गोश्त पकड़ के खाना शुरू कर देंगे, इस तरह करेंगे। मतलब आप निशाने हैदर एक अजीम एक तमगा है, आप उसको उससे भी मतलब कि ना अच्छा नवाज रहे हैं, शाबाश। इधर अब से इसको वो बहादुर है, उसकी बहादुरी यही है ना। प्लीज उसकी प्लीज बहादुरी प्लीज यही है। प्लीज लिसन टू मी, प्लीज 1 मिनट। मैं शहीद का वालिद इधर बैठा देखिए, हूँ। ऐसे लोगों को अगर आप ये कह देते कि इसको सोने के अल्लाह ने जूतों मेरे में हार बेटे को पहनाओ दिया है। तो ना, खुश ना, हो ना, जाते, ना, लेकिन वो ये जो बात कह मुझे रही है गाली देगा कि मैं ये यही निशाने कहूंगा, हैदर भाई की तेरा तौहीन है अगर तमगा आप उन निशाने लोगों के हैदर साथ है, इसको दो इस्तेमाल गालियां, करते हैं। तुम बहादुर हो, यही कहूंगा उसको, ये यही क्या कहूंगा, भाई, यही लफ्ज देखें कहूंगा, बात सुने अस्कानी साहब, इसका तरीका ताकि ये है, उसका आप ये ना दुबुर कि जले, निशाने ताकि हैदर उसका है, दुबुर आप जले। ये कि भाई तुमने PhD की हुई है गालियां देने में, तुम तो आला डिग्री लेके बैठे हुए हो, आप ये लफ्ज भी कहो यूज ना, कर सकते ये हो। भाईजान ये आप कहो ना, ये आप कहो उसको, मैं क्यों कहूँ? यार मुझे थोड़ी कोई मैं गाली देता है, या मैं किसी को थोड़ी गाली दे रहा खत्म, हूँ, आपको मेरे नहीं साथ तो देता कोई ना, ऐसे बात नहीं तो करता, आप मुझे क्यों मैं ना आकर उसको गाली समझाते हो? देता ये हूँ, मुझे नहीं कोई कहना, मिलती है। वो कहना, ये नहीं कहना, वो दोस्तों कहना। छोड़ो यार, गुज़श्ता रात मुझे सलात है, जो भी गाली देता है पीछे जो हो गया अपने आप को उसको बहुत बड़ा छोड़ दो। बहादुर समझता है, और तो बदगुमानी ना मेरे कोई मुंह में जो भी आएगा नहीं। मैं जवाब दूंगा, मुझे आप नहीं रोक सकते, समझे? मैं आपका क्या लगता हूँ? देने से अगर कोई मैं आपका बहादुर कुछ नहीं लगता होता, होता, अस्कानी साहब ये आपने याद क्या रखे, कहा? अस्कानी मुझे साहब भाई गाली ना देने से कहिए, कोई बहादुर तो नहीं ठीक होता, है, मैं बहादुर जूता वही कहता होता है हूँ जो अपने आमने तुम्हें। सामने मुकाबला करता है। अच्छा भाई, मैंने कहा भाई, आपने कहा ठीक भाई है मत ना, किए, गाली ठीक है? देने से मैं कोई आपको बहादुर नहीं अपना होता। जूता कहता हूँ, मेरे जूते, ठीक है? पांडा भाई, पता मसला क्या है, मैं आपको बता, तमाशा कर रहे मीर हो। साहब जो है ना वो पाकिस्तानी नहीं है, उनको इतना जुबान का उतार चढ़ाव पंजाबी और उर्दू का उनको नहीं पता। अब हमारे नजदीक निशाने हैदर की जो कदर कीमत है, इनके नजदीक वो एजाज है, ये बड़ा बहादुर है, इसको निशाने हैदर दे दो। ये नहीं हाँ, पता मैं कि यही निशाने इसी हैदर मतलब नहीं जो है ना उम्मे सिस्टर, उसका बेशक ये पाकिस्तानी नहीं है, चले ईरानी है ना, ईरान के भी हैं, लेकिन अगर ईरान का भी कोई अच्छा तमगा होगा ना तो हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि है ना उस कौम की है ना उसको एक डिग्रेड ईरानी करना आके शुरू कर आपकी माँ बाप एक कर देगा तो आप सारे कुछ कर देंगे, ये मैं नहीं नहीं, जानता। मैं तो नहीं और करूंगा, मैंने देखा जो है, गाली देगा मैंने उसके देखा ऊपर है, रिवर्स जाएगी, मुझे कोई गाली मैंने देगा देखा। वो मेरे ऊपर हाँ। नहीं जाएगी, वो उसकी माँ बहन पे लौट रही होगी। पांडा मैं भाई, इस मैं चीज को आपको एक clear बात करता हूँ। आपको क्या है? कि आप बहुत अरसे से गैर हाजिर हैं ब्रॉड से, आप यकीन मानेंगे इतनी गलाजत आप गुजर 22 की ब्रॉड के ऊपर चले जाए, हमारे आलिम जो मैं समझती हूँ कि जिस पाए का आलम आज के वक्त में किसी को नसीब हो जाए वो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान है, अपना अल्लामा ज़फ़रुल्लाह शाह साहब, ठीक है? आप उनके घर की जो इन्होंने दुर्मटी बनाई है, जो इन्होंने गुस्ताखियाँ की है अल्लामा सियालवी साहब के साथ और उसके साथ, और आज भी उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। नहीं सो उम्मे सिस्टर, मैंने यही चीज देखी और मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं 3 दिन से आ रहा हूँ, मैं मुसलसल बैठ के सुनता हूँ ऑफिस में बैठ के ना, मैं जी। ऊपर नहीं आ सकता लेकिन मैं सुन रहा होता हूँ, और मुझे ये चीज इतनी अजीब लगी कि इतनी उनकी एजेड है, मतलब एक एज ऐसी है, सफेद दाढ़ी है, बंदा दाढ़ी का लिहाज करता है, उम्र में चाहे 10 साल 5 साल भी बड़ा हो ना तो उसकी रिस्पेक्ट है, और वो तो मौलिम है, और ऐसे मौलिम हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे कि कुरान करीम का जो फहम है, मैं कहती हूँ कि कमाल की बात वो करते हैं, और इस लॉजिक के साथ करते हैं, इतने तहम्मुल के साथ करते हैं। इन लोगों ने उनकी फैमिली को, उनकी बीवी को, उनके बच्चों को अभी तक लटकाया हुआ है, तस्वीरें लगा लगा कर वो गंद बोलते हैं कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। नहीं, ये गलत है, ये बहुत, ये अखलाकियात से गिरी हुई हरकत है। उसके बाद देखिए, माँ बहनें सबकी सांझी होती है। अच्छा, उसके अपने बाद अखलाकियात के दायरे में रहे। 2 साल से मेरे साथ इनको जो कुछ ये कर रहे हैं आपके सामने है। शाहिद साहब की ब्रॉड के ऊपर आप चले जाए, आप देखें क्या क्या गंदी बात वो शख्स करता है पांडा भाई। वो गाली जो कभी आपने किसी मुशरिक, किसी काफिर, किसी गलीज इंसान से भी आपने नहीं सुनी होगी। और औरतों का नाम, उनकी बेटियों का नाम, मेरी बेटियों का नाम लेकर एक कहता जी अब मैं ये करने आ रहा हूँ, अब दूसरा आ रहा है, अब तीसरा, वो कुछ मैं आपको भेजूं, नहीं, आप ये हैरान हो जाएगी। मैं वही शायद उनकी बात कर रही ना जो यूके में होते हैं। जी बिल्कुल, मैं उनसे बात उनकी करूंगा। बात- ये वाली बात सही नहीं है बिल्कुल भी, ये इखलाकियात में नहीं आता। चाहे दुश्मन की भी बेटी है ना तो उसको भी है ना इस तरह नहीं कर सकते, ठीक हो क्या? ये इस्लाम में ये नहीं सिखाया गया।
मैंने 2 साल इनको बर्दाश्त किया। 2 साल तक मेरी बर्दाश्त जो है वो इस हद तक रही कि मुझे इन्होंने जो भी कहा मैंने जवाब में इनको जवाब नहीं दिया। अब एंड ऑफ द डे इन्होंने क्या किया कि शार्प शूटर ने ब्रॉड पे बुलाया मुझे। वहां पर आमद नज़ीर साहब के अल्फाज क्या थे? उन्होंने कहा उम्मे रुबाब जैसी औरत को नंगा करना हजरत अली की सुन्नत है, वो उनकी सुन्नत है कि औरतों को नंगा करो, ऐसी औरतों के कपड़े उतारो। ये हजरत अली मौला अली का कौल है और उनकी सुन्नत है। मुझे बताएं आज भी मैं चुप रहती? जी पांडा भाई। वो तो मैंने सुना है, वो मैं 2-3 दिन से ये सुन रहा हूँ, ये बहुत गलत बात है ऐसे। और ये हजरत अली का नाम ऐसे ले लेना ये किसी भी चीज में बगैर उसके, ये बहुत, मैं कहता हूँ ये बड़ा सेंसिटिव मामला होता है। ये मुंह से निकाली हुई बातें वापस नहीं आती। अब इन्होंने क्या किया कि कहा जी, एक यहाँ पर यूसफी नाम का आदमी है, उसने कहा कि उम्मे रुबाब सफदर टेंटो वाले की रखेल है। ठीक है, इसने इतनी बड़ी तोहमत मेरे ऊपर लगाई। मैं बड़ी एक बात याद रखना, मेरी एक बात याद रखना, जन्नत के अंदर है ना वो बंदा नहीं जाएगा जिसने किसी नापाक दामन औरत पे बुहतान लगाया होगा और वो बुहतान सच्चा नहीं होगा, जब तक कि वो माफ नहीं कर देगी। अब आगे ये बहुत बड़ी तोहमत है, ये बड़ी सबसे बड़ी तोहमत अगर किसी ने लगा दिया है वो बहुत बड़ा होगा। मेरी फैमिली की तस्वीरें लगाते रहे, गालियां निकालते रहे, गंद बोलते रहे। जब बात हजरत अली करमचुल्लाह की आई, जब बात मेरे बाप की आई, तो इन्होंने कहा कि ये एक जी एसपी है और उस एसपी ने, हमने उसकी तस्वीरें मेरे बाप की दी तो उन्होंने कहा कि ये मुद्दे टुंड की बेटी है, ये कुम्हारी है, इसकी बहनें जो हैं वो चकला चलाती हैं। मैं वो अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आप सारी बात को समझें। और ये एक गंदी औरत है और ये फलां है और ये ढमकान है, पता नहीं इसके आगे क्या क्या, कुछ जो कुछ आप लगा लें। अब मैंने अपने वालिद की यहाँ पर तस्वीर लगाई, मैंने अपना निकाह नामे की मतलब वहाँ पर फोटोकॉपी यहाँ पर लगाई ब्रॉड क्यों करके। मेरे बाप का नाम नियाज अली है, हम लोग बॉर्डर टाउन के रिहायशी है। टाउनशिप मकान नंबर 112 ब्लॉक नंबर 13B जो शौकी चंगड़ ने हमसे खरीदा था, उसके ऊपर उसने अपना ऑफिस बनाया। वो उसने मतलब हमने जिससे खरीदा था उससे आगे से उसने मतलब लिया झगड़े से या जो भी, तो हमने वो बेचा है घर। अब उस शख्स ने इतने गंदे इल्जामात लगाए तो मैंने यहाँ पर प्रूफ लगाए। मैंने कहा कि अब जितने इल्जाम तुम लोगों ने लगाए आए इनको सच साबित करो जो तुम्हारे पास है। इन्होंने कहा कि उम्मे रुबाब की गंदी मूवीज हमारे पास है। मैंने कहा लगाओ आकर। इसकी बेटियों के साथ हम ये करके आए हैं, रात को हम गए थे, सुबह गए थे। मैंने कहा ये आप कोई चीज प्रूफ तो करो। लेकिन मैंने कहा कि यहां अब इंतहा हो चुकी थी। अब पांडा साहब क्या मुझे अल्लाह इजाजत नहीं देता अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन लोगों का जवाब देना? अब हक सच से आप बात कीजिए। मैं तो कहता हूँ अगर इन्होंने ऐसी बातें की, आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप तो माशाल्लाह से बैठी भी अब्रॉड में है, वहां तो आप इनके ऊपर ऐसा केस कर सकती हैं, इनको लग पता जाएगा जिन्होंने ये बातें की। जी बिल्कुल, मैंने पाकिस्तान में जो है वो इनके खिलाफ केस भी किया है। मैंने मरियम नवाज साहिबा को इनकी रिकॉर्डिंग भेजी है और मैंने ये बात कही है कि ख़त्मे नबूवत की आड़ में एक ऐसा ग्रुप जिनके पास कोई इल्म नहीं है, जिनके पास कुछ ऐसा नहीं है, और एक प्रोपेगेंडा के तहत वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, वो दीन को बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसा लॉ होना चाहिए कि जो इस्लाम की तबलीग करे उसके पास कोई डिग्री हो, उसके पास कोई सोर्स। ये नहीं कि जिसका दिल चाहे वो खत्म नबूवत का काम कर रहा है, जिसका दिल चाहे वो जो मर्जी कर रहा है। इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैं इसके ऊपर बड़ा सीरियसली काम कर रही हूँ। अच्छा मैडम, मैंने पूछना है वो मरियम नवाज का नंबर कहाँ से लिया आपने? मुझे भी चाहिए नंबर उसका। अब इस हद तक कोई चला जाए तो मुझे ये बताए कि फिर हम कहें कि ये मुजाहिदीन है, ये खत्मे नबूवत का काम कर रही हैं। नहीं, ये कोई खत्म नबूवत नहीं है, ये तो आप फिर पर्सनल एक दूसरे को है ना वो उसमें ले रहे हैं। आपका काम ही नहीं है, इस्लाम में ये तो है ही नहीं, इस्लाम में ये तरीका थोड़ी है। ओ मैं इसका हल आपको बताऊं मैं कैसे आपकी जान छूटेगी, ये इनसे गालियों से कैसे जान छूटेगी, आपको इसका हल बताऊं मैं? जी जी, इसका हल ये ही है। और अंकल नवाज साहब तुसी जरा अपना म्यूट करो, ਤੁਹਾਡਾ शोर बड़ा आंदे आज जी। ये आमिर को लेना जरा कॉल पर अगर पॉसिबल है तो। जरा म्यूट करे जरा अपना।
जी उमर बाप इसका हाल यही है, आप चुप करके ना मोबाइल के अंदर से ना अपनी टिकटॉक डिलीट करें और चुप करके 5 वक्त की नमाज पढ़ें और कुरान पढ़ें और अल्लाह अल्लाह करें, आप सब ये छोड़ देंगे, आपको कोई गाली नहीं देगा आपको। ये क्या नहीं बात है? इंशाल्लाह अब ये क्या तरीका इंशाल्लाह हुआ मैनू भागने चाहिए वाला? नमाज पढ़े वो गलत काम ते थोड़ी कर मिर्जे रही ते है। दिन रात लानत पाए। चलो अपनी माँ की तरबियत दसन आ गया जी। नहीं रुक जाओ नहीं मिर्जा आमिर गाली कादियानी नहीं एक देनी, आमिर कज़ाब कोई गाली दजाल नहीं देनी। लानती नहीं सी। आंबरमान साहब इथों सब नहीं, ਤੋਂ मैं- ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ बट्टी एक मिनट बट्टी एक मिनट ਉਹ ਨੁਸਰਤ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿसी की सी ਉਹ आमिर एक मिनट बट्टी एक मिनट यार। हाँ आमिर यार इखलाकियात के दायरे में रह के बात करनी है, समझ ले। नहीं मैं ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਗਸ਼ਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਏ ओए गाली नहीं देनी। ਫਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਨਾ ਕਰਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ओए गाली कौन दे रहा है? ਤੇਰੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨੀ ਆ ਮੁੜ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਭੈਣ ਦੀ ਪਾਂਡਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਔਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਟਾਰਗੇਟ यार ਕੀਤੀਆਂ यार ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। एक मिनट ਭਾਂਡਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੂੰ आमिर बात ਇਸ सुन ਔਰਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਟਾਰਗेट ਕੀਤੀਆਂ। आमिर बात सुन आमिर बात सुन बात सुनो मेरी बात सुन पंडा जी को सुना यार रहा हूँ। देखो आमिर बात सुन ਭਾਂਡਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ लगाई ਕੋਈ सर, ਬੰਦਾ लगाई। नहीं। पांडा जी मैं अपनी ब्रॉड के मैं ऊपर इनको 10 अब घंटे सुन की ले। गालियां सुना सकता हूँ, पीर 10 साहब घंटे की, मैं जो अपनी ब्रॉड के इन ऊपर खबीसों ने दी है तौहीद और और ये तसव्वुफ आके के ऊपर मैं हिमायत कर बात रहा कर रही थी। एक मिनट पीर साहब एक मिनट। और मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है तसव्वुफ के ऊपर के सूरत हशर की, और उसका मैं तर्जुमा और तफसीर कर रही थी, जिस पर ये मोहतरम आए हैं और ये लगाए जी पीर साहब लगाए, ये शायद तो बताए पीर साहब लगाए, पीर साहब लगाए, पाना साहब को सुनाए जरा। लगाए अल्लाह हज़रत का कलाम। एक मिनट आला हजरत ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਮਰ ਬਾਪ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮੌਕਫਾ, ਤੂੰ ਕੀ पीर ਸੋਚਦੀ साहब अल्लाह हज़रत का कलाम लगाए, पीर साहब चुप करो सुनो यार, ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? लगाए पीर चुप करो सुनो। ਮਿਰਜ਼ੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਈ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਮਰ ਬਾਪ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਫਨਾ ਕਰਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਖੁੱਦੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨੀ ਆ ਮੁੜ अच्छा अंबर दी बच्ची नु तो बारे कह रहे हैं। यार अस्कानी साहब बंद करें प्लीज यार, मैं ये सुनने नहीं आया। अस्कानी साहब गालियां नहीं है, अस्कानी साहब गाली कि मैं अपनी यार, ब्रॉड आमिर के देखो ऊपर कितनी गलत बात है। हशर की हमें पाना साहब डराने और इस चीज को धमकाने वाले सुनो। भाईजान, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਲਾਂਤੀ ਸੀ। नुसरत जान जेडी सी किसी इनकी हालत ये दिखा दी जाए। आमिर एक गंदी अच्छा अस्कानी साहब एक मिनट दे, सिर्फ एक मिनट अस्कानी साहब एक मिनट दे, भट्टी साहब एक मिनट दे यार। आमिर बात सुन, नुसरत जान आमिर बात सुन, हमारे चौंक च बैठती सी, आमिर हर बात बंदा सुन, तेल आमिर लंदा बात सी। सुन, वालदा के बारे में आमिर बात सुन, आमिर बात सुन, आमिर बात सुन। देख अखलाकियात ये है, औरत को गाली देनी नहीं चाहिए, औरत के साथ मुकाबला बनता नहीं। दूसरी बात ये नहीं देखो मैं तेरे सामने मैं मिर्जे कादियानी नु कज़ाब लानती दजाल मनन दिया। मुझे पांडा मेरा साहब कीदा वा ये ए बड़ा बताइए मेरा कि मान है। मैंने किसी की ब्रॉड पर गई हूँ, कभी शाहिद की मैंने ब्रॉड उम्मे पर को कोई गाली नहीं मैंने दी, कभी अगर इनको मेरे मुंह से डिस्कस कोई किया उम्मे को है। गाली दी गई है तो मुझे इनसे बता कुछ दे। सीखा है, मैंने इनको कुछ अपनी ब्रॉड पे बुलाया, मैंने किया क्या, मुझे किस लेने तो ये पैदा हो गया यार भट्टी है, उसको गाली ना दो यार। आमिर इज्जत से मिर्जा बात करो। कादियानी कज़ाब सी दजाल सी लानती सी। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ नुसरत जान ਜਿਹੜੀ अम्मा जान चौक च बहंदी सी ना, वो हीरा मंडी गई थी। अच्छा, आमिर बात तो सुनो। ये पैदा हो गया, वो मजा लेने गालियां देखिए नहीं खुदा दो साहब यार। मेरी बात सुने। मैंने 1-1.5 महीना पहले ऐलान किया कि मेरी ब्रॉड पर कोई ना आए, मेरा किसी से ना कोई ताल्लुक है, ना मेरे पास कोई आए। मैंने सबको ब्लॉक किया, ये आइडिया बदल बदल कर आकर गालियां देते रहे। कल अबाबील साहब जो हैं उन्होंने अपनी ब्रॉड के ऊपर ये बात की कि हम अपना ज़िया अमीनी के साथ हैं और उनके साथ हैं और उम्र बाप के साथ हम लोग बाइकाट करते हैं। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है। अब ये आइडिया बदल बदल के मेरी ब्रॉड पर आ रहे हैं, मैं तो किसी के पास नहीं जा रही। मुझे साबित करे ना कि मैं किसी के पास गई हूं। अच्छा उम्मे बाजी, इनको आमिर को कॉल पहले मैं इसको समझाता हूँ, ये उधर समझाएगा। ये गलत काम है। देखिए आप दोनों एक ही काम कर रहे हैं। आप भी मर्ज़ई के खिलाफ लड़ नहीं रही हैं, वो भी मर्ज़ई जी के। मैं बिल्कुल वो काम नहीं कर रही। मुझे अगर कोई कहे कि मैं खत्म नबूवत का काम करी हूं तो खुदारा मुझे ना कहे कि मैं खत्म नबूवत का काम करी हूं। अल्लाह ताला मुझे दूर रखे ऐसे लोगों से और ऐसे लोगों के कामों से।
لیکن البتہ یہ غلط ہے. دیکھیں یار آپس میں گالیاں دینا ایک دوسرے کو سب سے پہلے بند کریں, ایک دوسرے کی تصویریں نہ لگائیں. آپ لوگ اگر نہیں بنتی آپس میں ایک دوسرے کو بلاک کریں. میری بات سنیں نا, کون سی عزت, کس عورت کی عزت ان سے محفوظ رہی؟ رحمت بی بی کو گالیاں انہوں نے دی, رحمت بی بی کی بیٹی کو گالیاں انہوں نے دی, صاحبہ کو گالیاں انہوں نے دی, تیا کو گالیاں انہوں نے دی, بنت ہوا کو گالیاں انہوں نے دی, فاطمہ کو گالیاں انہوں نے دی, پاکستان پرنسس کو گالیاں انہوں نے دی. وہ جو ایک معذور عورت آمنہ نام کی, اس لڑکی کے ساتھ, ایک معذور لڑکی کے ساتھ جو انہوں نے کیا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے ان کے ساتھ نہ ملائے, مجھے آپ کچھ بھی کہہ دیں, گالی دے دیں مجھے, لیکن مجھے یہ نہ کہیں کہ میں ان جیسا کام کری ہوں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ میں ان جیسا کام کروں. باجی اس کا بہترین سولوشن یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے راستے سے جائیں. دیکھیں میری براڈ کے اوپر آئے, آ کر مجھ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہاں پر XXX مووی چلا دی. میری براڈ ہیک ہوگی, میں کر نہیں سکتی تھی, اس کے بعد میری براڈ بند ہوگی. نہیں یہ بہت غلط ہے. چلائی آج میری براڈ پر آئے, شاہد کے ساتھ میری تصویریں لگائی ہوئی ہے. نہیں اگر ان کو دیکھیں, میں آپ کو ایک بات کہوں گا, اگر انہیں اختلاف ہے نا, اگر آپ سے نہیں بنتی آپ کو بلاک کریں. اب وہ اپنا کام جیسے چلا سکتے ہیں, جیسے کرنا انہوں نے وہ کرتے رہیں, آپ کو اپنے طریقے سے ڈیل کرنے دیں. بالکل. دیکھیں میں کسی اب کل پانڈا بھائی میں کسی نو گالی نہیں دواں گا, میرا تیرے وعدہ ہے. میں صرف چھوٹی جی گل کرنا چاہتا کہ جدو نبی پاک صلی اللہ کل ایک براڈ کے اوپر پاڈا صاحب مجھے بلایا گیا مستانہ بابا کی براڈ کے اوپر. میں گئی وہاں پر, مری اچھی گفتگو ہو رہی تھی, اور وہاں پر میر نام کا سن لینا, اور میں صرف بات میر نام کا آدمی, اور وہ نہیں, میری بات تو سن لیں پلیز, میری بات سن لیں, ریکویسٹ. میر نام کا آدمی آیا, اور ساتھ میں اس کے ایک آدمی تھا, سدھو جٹ نام کی آئی تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے آ کے کہا کہ ام رباب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور آپ قادیانیوں کی براڈ پہ جانا چھوڑ دیں, ان کو اپنی براڈ پہ بلانا چھوڑ دیں, آپ اپنا مزے سے کام جو بھی کرنا کریں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, اور مرزا قادیانی کے اوپر لعنت ڈال دیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں نے وہاں پر یہ بات کہی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانوں گی, میں یطع اللہ و رسول, مجھے تمہاری اتباع کی تو ضرورت نہیں ہے, تمہارے نہ مجھے ساتھ کی ضرورت ہے, نہ تم میری براڈ پہ آؤ, مجھے ضرورت نہیں ہے کہ تم لازمی آؤ. میں تو تمہاری کسی موقف کو صحیح سمجھتی نہیں ہوں, میری نظر میں تو تم کسی معاملے میں صحیح نہیں ہو. نہ تمہارا تبلیغ کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے, نہ تمہارا بات کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے, نہ تم لوگ عورتوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہو یہ مسلمانوں کا سلوک نہیں ہے. میں اپنی بات نہیں کرتی, میں باقی خواتین کی بات کر رہی ہوں. تو میں نے کہا مجھے تو تمہارے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, مجھے وہ کرنا ہے. اس کے بعد ابابیل صاحب نے کہا کہ ہم ام رباب صاحبہ سے بائیکاٹ کر رہے ہیں, اور ہماری براڈز پر یہ نہ آئے. میں نے کہا جی میں تو پہلے ہی نہیں آتی, آپ لوگ میری براڈ پہ آتے, آپ رکے, آپ منع ہو. اب آپ نے دیکھا کہ میں تو اپنی براڈ پہ بیٹھی ہوں, آ کون رہا ہے پاڈا صاحب؟ وہ مجھے پتا ہے, آپ نہیں جاتی کسی کی لائف پہ, وہ مجھے اندازہ ہے. تو جو آنے والے ان کو روکے, یہ کیسا بائیکاٹ ہے؟ کدھر ہے ابابیل صاحب؟ اتنے بڑے عالم ہیں آپ, ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں ضیاء بھائی کو صحیح سمجھتا ہوں, اور دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ احمد رضا بریلوی جو ہے وہ کافر ہے. ابابیل وہی ہے جو جن کا پہلے ختم نبوت کا نام تھا, اور ابھی جو یسوع مسلم ہے وہ رکھا ہوا نام وہی. یہ جی عبد الرحمان نہیں ہے, مفتی عبد الرحمان جو ہے وہ ہے. اچھا چلیں, ہم پتہ کیا اس کا بہترین یہ ہے کہ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جو بندے آتے ہیں نا, آپ ان کو بلاک کریں. یہ اگر جو کر بھی رہے نا حرکت, کتنے دن کریں گے, آپ رسپانس دینا چھوڑ دیں, 5 دن 10 دن کریں گے, خود ہی ہٹ جائیں گے. آئیڈیا بدل کر آتے ہیں. بس ٹھیک ہے, آپ بلاک کری جائیں, آپ کا کیا, صرف ایک لگنا بلاک کا, پرماننٹ بلاک کریں. اس کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹاپک کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, جب آ کے گند کرتے ہیں وہ موضوع چینج ہو جاتا ہے, آپ کا تسلسل ختم ہو جاتا ہے. نہیں آپ ہے نا ایک ایسا ماڈریٹر رکھے جو جیسی 1 منٹ بات کرے نا, کوئی غلط بات کرے, اسے منٹ سے پہلے باہر کر دے, بس ختم کرے.
یہ معاملہ ہی نہ ہو. اچھا میں نا صرف ایک چھوٹی سی بات کرنا یار عامر بات کر لینا. عامر یار اپنے بندوں کو بھی سمجھا شاید وغیرہ کو. پانڈا بھائی یار دیکھ وہ ٹھیک آپس ہے میں میں جو مرضی سب کرتے نو رہے سمجھانا گا یہاں پہ سارے سمجھ جان گے لیکن اینوں بھی سمجھنا چاہیے یار کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان چ گستاخی جدو یہ اتنے بٹھا کے کرواندی ہے مرزیاں نو ایدی کی مرزیاں تو بغیر ایدی بروڑ نہیں چلدی. ایک چھوٹا یہ سوال ہے یار. اچھا جی پانڈا جی جب میں بات کر رہی ہوں رد قادیانی کے اوپر اب سنیں ایک منٹ. ابھی آپ کے سامنے ایک شخص بیٹھا تھا اور یہاں پر ایک قادیانی بھی بیٹھا تھا اور وہ دوسرا آیا اور اس نے آ کر اس کے اوپر مرزا اور نصرت جہاں کے اوپر گالی گلوچ کرنا شروع کیا. اب مجھے ایک بات بتائی کہ جس وقت میں رد قادیانیت پہ کام کروں گی تو ڈیفینیٹلی میرے پاس قادیانی آئیں گے, میں انہی کے ساتھ بات چیت کروں گی. اب جب یہ آ کر ان کو کہیں گے گالی دیں گے آگے سے اس طرح کی بکواس کریں گے اور ایک علمی گفتگو کے اندر یہ اپنا رنگ ڈبوئیں گے تو اگلے کچھ نہ کچھ تو کہیں گے نا. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بالکل بھائی میں پانڈا بھائی تینوں سیدھی گل دساں اس عورت نے قسم کھا کے کیا سی کہ میں قادیانی. اس کا بہترین حل یہ ہے دیکھ عامر بات سن شاطمیت نہ ہو. ام باجی کو یہ کہہ سکتے ہو کہ جی آپ شاطمیت نہ کروانا باقی آپ ان سے علمی بات کریں. اگر وہ شاطمیت کرتے ہیں تو آپ انہیں اتار دو. یہ طریقہ ہے. بات کو بند کیجیے. میری سٹوری دا نہیں پتا سٹوری دا نہیں پتا سانو ایری سٹوری دا یہ اس گستاخ کو کیوں آپ بات کرنے دے رہے ہیں؟ یہ گستاخ رسول ہے. پانڈا صاحب ایک بات ڈن ہو گئی کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, میرا ان کا میرے ساتھ نہیں ہے. اب یہ آتے کس طرح گستاخی کروانے تاکہ یہ گالیاں دیں اور دوسری طرف سے بہترین حل یہ ہے دیکھیں آپ رد قادیانیت پہ بات کر رہی ہیں آپ کے پاس قادیانی آئیں گے. دراصل آپ نے جن کو اسلام کے رستے پہ لانا وہ قادیانی ہے, مسلمانوں کو تو لانا نہیں ہے, وہ تو آلریڈی رستے پہ ہیں. جب ان سے بات کریں گے تو ان سے یہ رول رکھیں کہ جی آپ شاطمیت کوئی نہیں کریں گے گستاخی کوئی نہیں کریں گے, بس ختم ہوگی بات. باقی اگر کوئی ایزی جو مرضی آتا بدماش آتا جو بھی آتا ہے آپ اسے بلاک کریں. کے وہاں پر لان تان کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں غلط بولتے ہیں اور پھر وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے, میری براڈ بند ہو جاتی ہے. عمر اباب صاحبہ تھوڑا سا موقع دیجئے. دیکھیں وہ جو کمیونٹی ہے وہ کہتا ہے میں آتا ہی شاطمیت کروانے ہوں. لوگ اس کی منتیں کرتے ہیں کہ جا بھائی یہاں سے چلا جا, خدا کا واسطے یہاں سے چلا جا. عمر اباب صاحبہ شاطمیت ہوگی, وہ کہتا ہے میں آتا ہی شاطمیت کروانے ہوں. تھوڑی بات کرانے دیجئے. 1.5 گھنٹے کی شاطمیت میرے پاس موجود ہے جو کرائی ہے ہیومینٹی نے. 1.5 گھنٹہ. وہ دوسری طرف سے کہہ رہا ہے بھائی تم ایسا مت کرو. وہ ایک ملحد ہے, کہتا ہے میں کچھ نہیں مانتا, یہ کہتا ہے میں تو کروں گا. رہی بات ابھی یہ جو بات کر رہا تھا نا, دنیا کا بدترین جو ہے یہ شاطم ہے کرانے والا. یہ لوگ آتے ہیں کیا کرتے ہیں, قادیانی کو گالی دیتے ہیں. جب گالی دیا اب ادھر سے گالی, اب مرزا کو گالی, اب وہ جو ہے نبی کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو سبب یہ ہے, یہ سبب ہے. کبھی بھی انہوں نے پہل نہیں کی, کبھی بھی پہل نہیں کیا. یہ شاطمیت کراتے ہیں بھائی. ہیومینٹی کا تو خاص طور پہ کوئی زیادہ مسئلہ ہے نا, وہ تو اپنے براڈ ٹاپ پر لے کے جانے کے لیے یہ حرکتیں کرتا ہے. پنڈا جی میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے آپ کو بائی کہا, میرے جوتے, تو یہ ہے اصل مسئلہ, کیونکہ آپ نے کہا تھا بائی مت کہنا. جی جو مرضی کہیں, میں نے بتایا نا میں اپنی سیلف ریسپیکٹ پر کمپرومائز کر لیتا ہوں لیکن ملک کی اور اپنے اسلام کے اوپر نہیں کرتا. ٹھیک ہے, میں آپ کو بائی نہیں کہہ سکتا, میرے بائی نہیں ہے. جوتا تو کہہ سکتا ہوں, جو مرضی کے مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. میرے سامنے آج تک کسی قادیانی نے, ہاں ایک بات ہوئی تھی علمی طور پر خواب کے سلسلے میں کہ جی خواب تو حضرت یوسف علیہ السلام ہے, اس کے اوپر میں نے اتنی براڈیں لگاتی تھی. یہ وہ لوگ ہیں, اس میں سندھو جٹ ہے, اس میں یہ جو سوری نام کی آئی ڈی ہے, اس میں پاور نام کی آئی ڈی ہے, شارپ شوٹر ہے, اس کے ساتھ وہ ہے اپنا کیا نام لیتے ہیں امر نذیر ہے. شاطمیت کرانے والے سب ہیں, سب حلب سے لے کر یہاں تک شاطمیت کرانے والے ہیں, سب یہ کراتے ہیں.
मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। हमारे बात कैसे होती है? पीर साहब को सुनवाए ना आप पाड़ा साहब को। मेरे पास रिकॉर्डिंग एक एक मौजूद है कि नहीं कौन तो उम्मे शुरुआत सिस्टर अस्कानी साहब की एक बात मुझे भी आज तक समझ नहीं आई, वो उन्होंने इस्लाम के नजरिए से कैसे कह दिया कि लाल जानवरों का पेशाब पीने वाला, ये इन्होंने गलत बात की थी, इन्हें रजू करना चाहिए था, ये बात इन्होंने गलत की थी, मैंने कहीं नहीं पढ़ा ये इस तरह का मामला। मेरे जूते आपको मालूम है वो हदीस? पाड़ा साहब देखे, मुझे पता है पाड़ा साहब जूते जी जरा वो हदीस बयान कीजिए। हाँ, इल्मी तौर पर कोई बात जो है वो कभी बेशी हो जाती है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा जो है वो गालियां, अब तुम लोग जिनको कलमा ही नहीं आता, हाँ, एक बंदा जो इल्मी बात करता है उसकी बात यानी एक बंदा हो जूता आपकी तरह और आपको कहेंगे कि ये गलत किया है जूता। अगर जूता जी आपको हदीस पढ़ सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं, तो मुझे बताइए। ओ बात सुन जाहिल आदमी, अस्कानी जाहिल, बात सुन मेरी। जी जूता जी जी बात सुन, पहले अपना इल्मी है ना, इल्मी सही करो, उसके बाद आगे इल्म फैलाओ। इनकम्प्लीट इनका इंफॉर्मेशन आगे जूता जी वो सिर्फ हदीस पढ़िए, सिर्फ वो हदीस पढ़िए जूता जी। बात सुनो, मैं उधर मैंने बैठ के पूरा मुनाजरा देखा था जिस दिन अरे मैं आपसे बहस लगाई थी ना, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपने उस दिन बहस लगाई थी, वो मैंने पूरी बुक से हवाला देखा था, ठीक है, मैं उधर ही बैठा हुआ था, आप वहां से फरार हो गए थे, भाग गए थे माने बगैर। मैं वही तो कह आपने रहा हूँ उस बंदे को घर से उठा के मस्जिद तक पहुंचाया, वो बुक लेके आया और उसने बुक खोल के दिखाई। वही तो मैं कह रहा हूँ जूता साहब, अभी आप वो हदीस पढ़ लीजिए और हमें समझाइए। हाँ, मैंने देख लिया था, वो मुझे नजर आ गया था कि कौन ठीक है कौन गलत है। तो वही तो कह रहा हूँ, आप एक जूते की मानद है ना। आप ना इस्लाम पे बात ना किया करें, क्योंकि आपके पास अभी नॉलेज ही नहीं है, आप है ना अभी हवाई तीर चला। यानी आप जैसे जूते यानी आप जैसा एक जूता पांडा जी, एक मिनट पीर साहब, एक मिनट पीर साहब, अजीब बात है पीर साहब, एक मिनट मैं जूते जी से ये कह रहा हूँ, मेरे जूते जी आप जैसे जूते वो तो पांडा के साथ मुझे बात करने देते पीर साहब। नहीं, जूते जी से मुझे बात कराने दीजिए थोड़ा सा। ये जो हदीस है जूता साहब आप ये पढ़ लीजिए बस जी। पढ़ लिया, मैं आपको पढ़ने की जरूरत है। पांडा जी मेरी बात सुनिए, तो याद है, मुझे तो याद है अल्लाह के फजल से जूते पांडा साहब मेरी बात नहीं पढ़ सकते, मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह। तू जूता है, तू पढ़ देख के नहीं सकता, यानी जिसको याद हो वो तो बात नहीं कर सकता, जो देख के नहीं पढ़ सकता वो बात करेगा। भाई अभी आप बात करेंगे या फिर मैं इसके साथ कुछ करूं? फिर नहीं क्या करोगे? पीर साहब नहीं जूते को करने दीजिए, इनका भी गंद निकलने दीजिए। पीर साहब एक मिनट सिर्फ, इनका भी गंद निकलने दीजिए जूते का। वैसे एक मिनट ठहर जाए, पीर साहब एक मिनट ठहर जाए, जरा खामोश हो। पांडा जी आप अबाबील को मानते हैं कि वो आलिम है बहुत बड़ा? उम्मे सिस्टर अबाबील अब दो हैं, एक तो है ना वो लड़का सा है, मतलब इसने आजकल नाम रखा हुआ यसु मसीह, पहले उसका नाम अबाबील था, उसके बाद खत्म नबूवत जिंदाबाद, एक और इस तरह आईडी भी बनी थी, उसकी बात कर रही हैं? नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रही, जो मुफ्ती मिशी के नाम पे अब्दुल रहमान थे। नहीं उनको मैं नहीं जानता। मुफ्ती मिशी के नाम पर अब्दुल रहमान की आईडी है और देवबंद है वो, ठीक है, बड़ी अच्छी मतलब इल्मी शख्सियत है, इल्म है उस बंदे के पास। अब उसके इल्म के मुताबिक अहमद रजा बरेलवी जो है वो काफिर हैं और कादियानियों से भी बदतर है वो, ठीक है। अब उनकी बात करते हुए वो जिया बीवी को कह रहा है वो मेरा भाई है, ये क्या तरीका हुआ भाई? एक तरफ तो आप कह रही हैं कि अहमद रजा बरेलवी जो है वो ये है, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि वो जो है वो मेरा भाई है और हम उसके साथ खड़े हैं। उमर अबाब साहिबा, ये जूता साहब कौन है? देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, शिया हैं, कौन है? ये हमारा बड़ा प्यारा भाई है और बड़ी अच्छी शख्सियत का मालिक है पीर साहब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मैंने कभी देवबंदी इनमें कभी फिरकों में नहीं पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ नमाज मिलती है पढ़ लेता हूँ। चले मैंने खुदा को दिया उससे करना सजदा, मैंने किसी है ना फिरके को नहीं करना। उमर अबाब साहिबा मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए प्लीज। जी बोले। आपकी किताब से आपको जो चीज मेरे कुरान में, हदीस में और सुन्नत में नहीं मैच होती ना, कि जो चीज इस्लाम के खिलाफ जा रही होती है, तो मैं उस चीज को फॉलो नहीं करता। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना अच्छा आदमी है। देखा, एक मिनट
मैं अभी जूता साहब की किताब से उनको दिखा दूंगा ये पेशाब के बारे में। जूता जी ये देखें, ये आपकी किताब है, मुसलमान है आप? मेरी कोई किताब नहीं है, अल्लाह ताला की किताब है, अल्लाह की तरफ से दी हुई है। आप सुन तो लीजिए जूता जी, सुन तो लीजिए। ये आपकी किताब है मुसलमानों की, वसाइल शिया। ये कौन है? शेख ताइफ हुर्र अल-आमिली, हुर्र अल-आमिली। कोई इसके सामने जुबान नहीं खोल सकता, मुसलमान है। देखो क्या लिखते हैं, बाब जवाज शुर्ब अबवाल अल-इबिल वल बकर वल गनम वल आबिहा वल इस्तशफा बि अबवालिहा। ये मस्ताना बाबा तशरीफ लाए हैं, इनको आने दे जरा। नहीं ये बताए, ये मस्ताना आप हदीस बाबा बता जरा रहे हैं। तशरीफ ले आए। जी जी हदीस सुना रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए। अच्छा जरा रेफरेंस दें इसका। मैं अभी तो दे रहा हूँ ना, आप सुनते नहीं है? रेफरेंस नंबर बता दें, मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ रेफरेंस। हाँ ये देखे, वसाइल शिया अल्लामा शेख। आप ये सहाय सतह की बात कर रहे हैं, ये सहाय सतह में आ रही है। नहीं, अहले तशी की बात कर रहे हैं। आपने नहीं कहा आप मुसलमान है? नहीं बात सुने ना, ये अहले तशी में आ रही है ना। मेरा जी अहले तशिया मुसलमान नहीं है ना, अहले मेरा तशिया फिक्र जाफरी मुसलमान तो नहीं है ना, मैं तो हनफी अहले हूँ। तशिया मुसलमान नहीं है? अहले तशी हैं, लेकिन मैं तो तो हनफी बस हूँ ना। खत्म हो गए ना आपके मुसलमान की, आपकी किताब नहीं है ना। मैं तो हनफी हूँ ना। देखे तो उनका, फिर पहले क्यों नहीं कहा? मैं सैयद की पहले आल क्यों में नहीं से तो कहा? नहीं हूँ ना, मैं सैयद की हाँ, आल में से देखा? तो नहीं हूँ। तो इसीलिए देखो किस तरह से अभी आप हनफी बन गए। नहीं बात सुने, बात सुने, उन सैयद वो हैं सैयद की आल में से, उनका मेरा कंपैरिजन नहीं है, उनका मुकाम दूसरा है। यानी वो बड़े हैं? हाँ मैं मानता हूँ, वो अहले यानी बैत इस्लाम में में से, बड़ा छोटा है, कहीं बड़ा छोटा है? वो अहले बैत में से हैं। कौन कौन अहले बैत में से? क्यों अहले बैत में से नहीं मानते आप अहले तशियों को? कौन अहले तशी अहले बैत में से? क्यों नहीं है? 11 इमाम में से नहीं है? ये देख ले उमर बाब साहिबा, ये हालत है। पढ़ना भाई क्या हो गया है? अहले बैत में से, ये इनकी इल्मी सलाहियत है जूते की। हजरत अहले ज़ैनुल बैत तो आबिदीन नबी की करीम नस्ल में से सल्लल्लाहु नहीं है। अलैहि मेरे वसल्लम कितने ने दोस्त हजरत हैं अली जो को, हैं। हजरत अकील को और उनकी जो भाई। फैमिली है उम्महातुल मोमिनीन है, उनको कहा है हसन, हजरत इमाम हुसैन को, वो अहले बैत है। बाकी तो अहले बैत नहीं मानने वाले भी अहले बैत हैं। नहीं, देखिए मैं बताता हूँ, उम्मे वाली बात सुने, हजरत ज़ैनुल आबिदीन जूता किसकी साहब। हाल में से थे? जूता साहब सुन लीजिए, जो अहले कहते हैं हम शिया हैं, वो तमाम वो अहले बैत है मानने क्यों वाले। बुखार, बात सुने, आप शिया किसे समझते हैं? शिया जो कहते हैं कि हम हजरत अली के शिया हैं, वो उनको समझता हूँ। जो शियाने अली थे ना, हजरत अली को मतलब मानने वाले, उनको फिर अहले तशी कहा गया। हाँ वो अपने आप मैं यहाँ पे अहले बात बैत सैयदों वो की हैं कर रहा हूँ, जब नबी जैसे करीम बुखारी सल्लल्लाहु हो अलैहि गए। वसल्लम, एक मिनट पांडा जी मेरी बात बुखारी सैयद है। अहले बैत वो हैं जिनका जिक्र जो है कुरान करीम में आयत ततहीर में आया, जो ये हदीस इल्मी मुबारका में सलाहियत है है कि जूता ये साहब मेरे की। अहले बैत है, वो अहले बैत है। हाँ अभी आप कह रहे थे नहीं, उमर बाब साहब। आप हजरत ज़ैनुल आबिदीन को भी फिर कहेंगे कि वो अहले बैत में से नहीं है। एक मिनट मोहतरम जूता, एक मिनट। अभी आप कह रहे थे कि मैं मुसलमान हूँ, तो मुसलमान अगर शिया नहीं है, मैं मुसलमानों की किताब से पढ़ रहा हूँ, फिर आप इनकारी क्यों हैं? भाई उनके मेरे कॉन्सेप्ट नहीं है ना, उनका डिफरेंट है। फिर बोलो वो अलग हैं, हम चलिए, अलग अभी हैं। बाबा मस्ताना तो उनका जी different बताइए, है। एक मिनट जरा चुप कर जाए पांडा। तो यही तो मस्ताना कह रही बाबा हूँ। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मस्ताना बाबा जी, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, ज़हे नसीब आप तशरीफ लेकर आए, और वो कहते हैं कि वो हमारे घर आए, ये खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं, तो अहलन सहलन मरहबा, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। देखिए मस्ताना बाबा, कल आप ही की ब्रॉड के ऊपर एक फैसला सुनाया था अबाबिल साहब ने, ठीक है, और कल से जी 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 मेरी ब्रॉड के ऊपर ये पटे खोल कर ये मेरी ब्रॉड पर है, आके गलाजत बोल रहे हैं। पीर साहब जरा इनको गलाजते, मैं तौहीद के ऊपर बात करी थी, तसव्वुफ और तौहीद के ऊपर, कुरान करीम की सूरत हशर की आयत पढ़ी हैं, और इन्होंने वो गंद बोला है। कल मुझे तो ये बात कही गई थी कि इनका बाइकॉट है। अब अबाबिल साहब को बुलाएं और उन्हें कहें कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। मैं सुनाता हूँ रात वो। से इनका यही सिलसिला है। कौन ये जो मुजाहिदीन बैठे हैं यहाँ? मैं सुनाता हूँ, सुन लीजिए। ये हजरत जूता जी बात कर रहे हैं, सुन लीजिए।
ਫੁੱਦੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇਰੇ ਜਸਕਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਗਸ਼ਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਏ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਨਾ ਕਰਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਮੁੜ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕੁੱਤੀਏ बंद कर दिया अफगानी साहब, बंद कर दिया। ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਲੈਣੀ अच्छा आपके बंद करे, मैंने बंद कर दिया। ये थे अल्लामा जूता साहब, जी। अल्लामा जूता साहब। अब ये वो मुजाहिदीन जिनका मुझे कल अबाबील साहब ने कहा था कि मेरे बाप आपके साथ बाइकॉट है, आप हमारी ब्रॉड पे आती हैं तो हमारी बड़ी तौहीन है इसमें, और आप यहाँ पर ना आएँ, इनको कोई ना ले, और इनके साथ इस तरह से। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं तसव्वुफ के ऊपर बात कर रही थी, सूरत हशर की जो आयात मुबारका है उनके ऊपर जो है मैं बात कर रही थी, जिसके ऊपर ये साहब आए हैं और इन्होंने अपनी आईडी बदली और आकर तो इन्होंने ये गाली गलोच की है। मस्ताना बाबा मुझे अब ये बताएं, बाइकाट करने के बावजूद मैं किसी जगह पर नहीं, मैं इसकी आवाज पहचाना नहीं। जूता साहब, लेकिन अब जूता साहब कौन है? अस्कानी साहब जूता साहब को तो मैं नहीं जानता, नाम बताओ उसका। मोहतरम मेरे भाई, शैतान का कोई नाम होता है? शैतान शैतान होता है भाईजान। आप सीधी तरह नाम ले दिया करें, डरते क्यों है? जिसने दिया उसको नाम दे दिया करें। ये नहीं, ये मेरे ख्याल से वैसे मजाक कर रहे हैं आप लोग। नाम बता देता कि मैं पहचान सकूं कौन है वो बंदा। ये मुझे जी नहीं मालूम, मेरी बात सुने, मुझे नहीं जो मालूम, मैं तो जिन्होंने उसको जूता गालियां कहूंगा, सिर्फ ये एक शैतान बंदा नहीं कहूंगा। आया, डिफरेंट आया, उसमें आकाश मलिक था, गुजर नाम की आईडी नंबर 22 थी, उसके अंदर सिद्धू जट था, उसके अंदर सॉरी नाम की आईडी जो थी जो पहले कुरकुरे के नाम से थी, उसके बाद फिर पावर था, उसके अलावा मतलब डिफरेंट तरह से फिर लोग आते रहे। वो था सिस्टर जो आपकी लाइव पे आता था जी, सिद्धू जट जो कल बैठा हुआ था, जो कह रहा था कि हम इसको कुछ नहीं कहेंगे और ये हमारे साथ ये कहे कि ये उनकी ब्रॉड पर जाके ठट्ठा नहीं उड़ाएगी, लाल डीपी लगाई है जिसने, लाल डीपी जी, जिसके साथ जी बिल्कुल वो है सिद्धू जट जी। ये तो कुछ भी नहीं है, शैतानों की जो है और इन्होंने गंदी मूवीज चलाई हैं, ट्रिपल एक्स मूवीज जो है मेरी ब्रॉड के ऊपर आके बस्ता नहीं। उम्मे सिस्टर मेरा एक छोटा सा सवाल है, सिर्फ एक, मुझे एक चीज बड़ी है ना, 3 दिन से मैं देख रहा था, मतलब ये मस्ताना भाई एक मिनट देंगे सिर्फ। आपकी ब्रॉड की मेरे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, आपकी ब्रॉड पर काफिर लोग बैठ के जो है ना मुसलमानों को गालियां देते थे और आप सुन रही थी, मेरे पास अभी भी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। जी मस्ताना बाबा, काफिर लोग जो है ना वो आके आपकी ब्रॉड पर बैठे थे और मुसलमानों को गालियां दे रहे थे। मैं आपको बताती हूँ, मेरी ब्रॉड के ऊपर बैठ के एक सेकंड, तो मुझे रिकॉर्डिंग्स भेजी गई है, एक मिनट मस्ताना बाबा, एक मिनट, और आप सुन रही है बाकायदा। अब सुन ले मस्ताना बाबा। जी 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 जी। कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी किसी मुसलमान को, किसी कादियानी को गाली देने की इजाजत दी हो, कभी भी, नंबर 1। नंबर 2, जिस वक्त मैं अपनी ब्रॉड पर नहीं होती थी तो मेरी ब्रॉड पे सिद्धू जट जो कल मेरी ब्रॉड पर आया था और शार्प शूटर, ये कादियानियों के साथ, क्योंकि मेरी होती थी रात के 2:30-3 बजे का टाइम होता था, तो इनको मैंने मॉडरेटर बनाया था कल जो आया हुआ था। ये आकर रात को जिस वक्त मैं सो जाती और ब्रॉड कहते कि आप बंद ना करे तो हम लोग ब्रॉड पे बैठते हैं, ये फिर उनको गालियां देते। आगे क्या होता मुझे नहीं पता, मैं वहां पर अदम मौजूद होती, मुझे नहीं पता। बाद में मुझे पता चला, कादियानियों ने कहा कि जी आप रात को ये हुआ, शार्प शूटर ने, जिस वक्त मैं शार्प शूटर को बुलाया कि हाँ भाई, तो उसने कहा कि नहीं मैंने गाली नहीं दी थी, मैंने कहा था सबूई को पेश करो, फलाने को करो, फिर ये गाली हुई। आज भी एक अहमद जट का आदमी यहाँ पर बैठा हुआ था, इधर से लोग आए हैं, उन्होंने आके मिर्जा कादियानी को गाली देनी शुरू की। वो बार बार मुझे कहता रहा कि उमेर बाब साहिबा इसको म्यूट करें, इसको ये देखे गालियां, और मैं उसको म्यूट करती, जैसे ही वो म्यूट खोलता फिर गाली देना शुरू कर देता। और यहाँ पर एक मैं घंटे की आपको रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ कि शातमियत में हमारे जो मुजाहिदीन जो कहते हैं खुद को, वो जाते हैं, जाकर दूसरों की ब्रॉडों के ऊपर गाली गलोच करते हैं। जब उनको जवाब में आता है तो ये कहते हैं जी हमें गाली दी, ये कहते हैं हम शातमियत खुद करवाते हैं, ये ह्यूमैनिटी के अल्फाज हैं कि हम खुद शातमियत करवाते हैं, हम चाहते हैं कि तुम शातमियत करो। उम्मे बाजी
جی मेरा एक सवाल है, देखें मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, 4 दिन से एक बच्चा होता है ना कॉलेज टाइम का, चलो वो ऐसी हरकतें कर रहा हो ना, एक दूसरे को गालियां दे रहा हो, समझ आता है। अब हम सारे इस एज में है कि 40+ ही होंगे जितने भी हैं जी, ये इस उम्र में आके ये मेच्योरिटी लेवल बनता है कि ऐसी गालियां बैठ के लाइफ के ऊपर औरतों को देना, या औरतें मर्द को दें, या आपस में एक दूसरे को दें? देखिए 2 मतलब साल कोई इस तरह की हरकतें सूट करती देखिए हैं? मस्ताना बाबा, आप अभी चले जाएं आकाश मलिक के पास, आप अभी चले जाएं उसके जट के पास, आप चले, मेरा तो आप कह दें कि मेरा बाप बड़ी कसूरवार है, मुझे बताइए, आप समझते हैं कि जफरुल्लाह शाह साहब की पर्सनालिटी किस तरह की है? कितने मोहतात अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। उनकी बीवी को, उनकी बेटी को, उनकी बहुओं को आज भी उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं और उनको गलीज गालियां दी जा रही। नहीं देखो उमर बाब, ये गिला शिकवा देखो अगर कोई दूसरा बंदा करे ना तो समझ में आता है, लेकिन आप तो ये नहीं कर सकती ना, क्योंकि आप खुद खातून होकर आप दूसरे खवातीन के, मतलब मेरे पास एक रिकॉर्डिंग आई है, उसमें आपने एक खातून की तस्वीर लगाई है। जी, अब मैं बताती हूँ वो खातून कौन है। एक सुन ले पहले, सुन एक मिनट है मैं बाबा पूरी जी, बात बाबा जी एक मिनट, बात पूरी करें। एक मिनट बाबा जी, मैं आपको शाहिद की, मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी, जाहिद भाई और जाफरी भाई अगर सुन रहे हैं तो वो भी तशरीफ ले आए, वो जरा आपको सुनवा दें। 1 मिनट में जरा पीर साहब को सेंड कर दूं, होल्ड कीजिए। मेरी तरफ हो गया है, 4:30 बज गए सुबह के, मैंने फिर 3 घंटे बाद ड्यूटी पे वापस। अच्छा लगा आपसे बात करके। वो खातून जो है, मस्ताना बाबा किधर है? मस्ताना बाबा जी, वो खातून जो है वो उस आदमी की बीवी है जिसके सामने वो मेरी बेटी को, मेरी बच्चों की तस्वीरें लगाकर 2 साल से गंद बक रहा है। एक बंदा मेरी बेटी का नाम ले लेके बकवास करता है। आज उसको अपनी बेटी बीवी की तकलीफ हुई, आज उसको ये कहते हैं कि मेरी बीवी की, मैंने उसकी बीवी को वो बातें नहीं करवाई मर्दों से जो वो मेरी बेटी का नाम ले लेके कह रहा है, जो अभी आपने सुना भी, मैंने वो नहीं किया। मैंने उसे ये कहा कि ये वो गलीज और गंदी औरत है जिसका खावत सबको बिठा के गंद बोलता है। उसको, आपको उसकी तकलीफ आई 2 साल, बस तारा बाबा आपको मेरी तकलीफ नहीं हुई, आपको मेरी बेटी की तकलीफ नहीं हुई। मैं मुझे तो ये मालूम नहीं है, नहीं उमर बाब, मैं ये बता रहा हूँ कि देखो मुझे तो ये मालूम नहीं है कि आपकी बेटी की तस्वीर लगाई है किसी ने, लेकिन मैंने आपको बता रही हूँ ना कि 2 साल, बस्ताना बाबा 2 साल मैंने जाफरी भाई को सारी रिकॉर्डिंग भेजी है, मैंने तस्वीरें भेजी हैं, मैंने सैयद जाफरी साहब को मैंने उनके व्हाट्सएप के ऊपर जो है सारी चीजें शेयर की, आप सुने। नहीं मैं सुन चुका हूँ, लेकिन उसका मसला ये है, ताहिर साहब वालेकुम अस्सलाम, एक मिनट, लेकिन देखो ना असल मसला है, कल भी मैंने अपनी ब्रॉड पर आपको बताया कि अगर आपका किसी के 1 करोड़ इख्तिलाफात से किसी भी खत्म नबूवत के मुजाहिद के साथ, ठीक है ना, लेकिन आप जो जवाबन जो रद्द-ए-अमल में आप काम करती है ना, बिल्कुल गलत और घटिया काम है वो किया जो मैंने देखा है। क्योंकि मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुनो, आप मुझे बात पूरी नहीं करने देती। मस्ताना बाबा मुझे ये बताएं कि मुझे 2 साल बाद भी हक नहीं है? वो मैं आपको बता 2 साल बाद भी मैंने, अब मुझे हक नहीं है कि मैं अपनी आवाज उठा सकूं? जब वो ये बात कह रहे हैं कि हजरत अली की सुन्नत है, इसको गालियां दो, मैं तब भी चुप रहूं? नहीं, उस पर मेरी कल रात आप लोगों ने आमिर नज़ीर की वो रिकॉर्डिंग सुनाई, और आज उस पर मेरी आमिर नज़ीर से बात हो चुकी है। उसमें आमिर नज़ीर बिल्कुल क्लियर कट साफ है, वो इतना कोई बड़ा मसला नहीं, उसने अपनी बात की वजाहत की, तो वो आमिर नज़ीर के बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा। वो देखिए जी, मेरी बात सुनो, मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, आप मुझे बात पूरी नहीं करने देते हैं ना। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। आपने कल एक ऐलान कर दिया बाइकाट का, अब ये कुत्ते यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये रात से दिन से, मैंने 2 दिन से ब्रॉड लगाई है। अल्लाह की बंदी, आप जिनका नाम ले रहे हो, आप जिनका नाम ले रही हो, उनसे हमारा कोई लेना देना है जी। ये उसके बारे में ये अबू बकर जो है, अबू बकर उसका खास बंदा है जिसने गालियां दी हैं। अबाबील भाई ने जिसके बारे में कहा था, जिन लोगों के बारे में कहा था, जिन लोगों का नाम लिया था, वो हमारा लिया था, ठीक है ना। नहीं, हम जितने भी लोग कहा था
उन्होंने अबाबिल भाई ने ये कहा था कि जी ये आमिर नज़ीर और जो अपना ज़िया अमीनी है ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अब मैं रुआब के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारी लाइव पे ना आए, हालांकि मुझे बुलाया गया था। हमारा सबका इसके साथ बाइकॉट है। बाइकॉट होने के बाद आज अबाबिल साहब किधर हैं? आज उनके जो हवारी है अबू बकर है, वो जो मलिक है कुकड़ू कुड़ू वाली आईडी मलिक इमरान जो है, वहां का जो अब्दुल्ला है, वो सारा दिन से मुझे गालियां दे रहे हैं आके। उन्होंने तो बाइकआउट किया, मेरी ब्रॉड पे क्यों आ रहे? मैं तो कहीं नहीं गई। इसका मैं आपको जवाब देता हूँ, आप सुन ले जी। देखो ये जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो खत्म नबूवत का काम करते हैं ना हमारी तरफ से, वालेकुम अस्सलाम, हमारा जो यानी जो हमारे जमात के और हमारे ग्रुप के लोग हैं जिनसे हमारा ताल्लुक है। जी शेख हादी साहब आप मुझे बात तो करने देना सर, 1 मिनट दीजिएगा। मेरे से सवाल हो जी, आप करे शेख हादी साहब आप नहीं आप पहले बात करें मस्ताना बाबा, मैंने उनको म्यूट लगा दिया, आप बात करें। अच्छा, यानी मैं जिन लोगों को जानता हूँ, जिस तरह मुफ्ती बिहार साहब हो गए, अबाबिल भाई हो गए, और कुछ खास लोग और हैं जिनका अभी आपने नाम नहीं लिया कि वो लोग आए थे और गालियाँ दी। बाकी आकाश मलिक हो या चाहे जो भी हो, उनको ना मैं जानता हूँ ना जी। उनसे मेरा आकाश कोई मलिक लेना है, देना वो भी इन्हीं का बंदा है, शाहिद इनका बंदा है। अभी जो बात कर रहा था वो शाहिद है। जो अबू बकर है वो आमिर नज़ीर का राइट हैंड है, उसके साथ होता है हमेशा। वो जो अब्दुल्ला है वो उसके साथ है। उसके बाद ये जो कम्युनिटी है वो उनका है, मतलब ये पूरा ग्रुप उन्हीं का ही है। नहीं, उनका तो हक भी बनता है ना। देखो ना, आमिर नज़ीर का मसला आया, आमिर नज़ीर ने जो अल्फाज अदा किए ना, तो उसके जवाब में आपने अपनी ब्रॉड पर जो है ना, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, लेकिन मेरे पास दूसरा फोन नहीं है, मैं सुना नहीं सकता। जी तो उसके बदले में आपने काफरों को साथ बिठाकर मुसलमानों को गालियां दिलवाई, और आप बाकायदा काफिरों को साथ नहीं बिठाया, काफिरों को मेरे साथ नहीं बिठाया। एक सेकंड, पास है वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। कि 1 मिनट पीर साहब, 1 मिनट मुझे पीर साहब बात करने मेरी बात सुन लीजिए। पीर साहब 1 मिनट, काफिरों को बिठाकर मुझे म्यूट लगाकर, मुझे बार बार म्यूट लगा के बाद में ड्रॉप कर दिया, और उन काफिरों के सामने कहता रहा कि ये गंदी औरत, ये मक्कार औरत, ये जलील औरत, इसके साथ ये करना है। फिर काफिरों ने मुझे बुलाया कि ये भाई आके जवाब दो इसका। बाबा क्या कर रहे हैं अपने ब्रोड पे? सुन लीजिए, बाबा की जुबान सुन लीजिए, अपने उलमा के साथ बैठ के ये सुन लीजिए। हाँ बोलो बात तो सुनिए, आप रिकॉर्डिंग चलाओ। हाँ प्लीज, ये देखिए बाबा साहब के उलमा क्या कर रहे हैं ब्रोड पे बैठकर, सुन लीजिए। जब तूने लोगों की तूने ट्रोल किया और उसके बाद जो रास्ते तेरे हाथ से निकल गई, अब तू जनाब उनके बारे में बकवास और ये जाफरी आदमी और ठरकी तो तू है, बेगैरत तू पुत्र साबित कर, ठरकी मेरे पास तू साबित कर यार। उसको म्यूट कर रहे हैं। ये मैंने सुन लिया। 1 मिनट बाबा जी, 1 मिनट। अब अफजल साहब को देखो कैसे गालियां दे रहा है, सुन लीजिए, आलिम है आपके। और ये उम्र रुबाब की वजह से दे रहे हैं, उम्र रुबाब को डिफेंड कर रहे थे ये दोनों। हाँ देखा, उम्र रुबाब की वजह से दे रहे थे। किसको? शार्प शूटर को, आलिम गाली दे रहे हैं, गालियां दी थी। तुम्हारे आलिम गाली दे रहे हैं जी। शार्प शूटर ने आके गालियां दी, को गालियां दी। अब सुन नहीं सकते? 15 15 मिनट तुम लोगों ने गालियां दी है एक दूसरे को, 15 मिनट। जी मैं, तुम लोगों को शर्म नहीं आया? उमर बाप साहबा, मैं कुछ बात कर सकता हूँ? मैं इसका जवाब दे दो, अस्कारी साहब को मैं जवाब दे दो। मेरे मोहतरम भाई मेरी बात जवाब ले ले। वो आपने कहा कि शर्म नहीं आई, शर्म की मैं बता रहा हूँ, शर्म मुझे अभी आ रही है। मेरी बात तो सुन लीजिए प्यारे भाई मस्ताना साहब। बताए ये शार्प शूटर ने, ये अवामुन नास में से हैं, इन्होंने इतनी गालियां मुझे दी, एक जवाब भी नहीं दिया है। साहब ये शार्प शूटर वहां पर गया था, पहले उसने रामत बीबी को मैं जानता हूँ, सुन तो लीजिए, मैं तो बताना बोली, चाहता फिर हूँ। उसने मेरे पे बोली, फिर जाफरी साहब ने उनको जवाब दिया, फिर उनकी तस्वीरें लगाकर उसको पर लानत नहीं कर बड़ा गलाजत बोला। ऐसा नहीं है, ये शातिर हैं, ये बात को इन्होंने मोड़ा। मैं बैठा हुआ था, मेरे पास 15 मिनट की रिकॉर्डिंग है, इन्होंने बात को मोड़ा, ये शातिर हैं। ये हजरत बैठा हुआ है, गाली दे रहा है, क्या नाम है, जाफरी गाली दे रहा है,
अफजल गाली दे रहा है, वो है शार्प शूटर को दे रहे थे ना, छह शार्प शूटर सात को कह आलिम रहे हैं थे, गाली दे रहे हैं इसको। शार्प शूटर की गालियों का जवाब दे रहे हैं। ना ना मैं ना, बता ना, रही ना, हूँ मैं कि आपको 2 सुनाता साल हूँ से ये पहल तमाशा इन्होंने किया हुआ है, फिर किसी ने तो जवाब देना है ना। उम्र रबाब साहिबा, इन्होंने पहल की है, इन्होंने, मैं आपको सुना सकता हूँ। मेरे पहले पास मैंने देखे, मैंने भी वहां पर मौजूद थी, हाँ। पहले रहमत बीबी तो को ये बड़े गालियां दी अगवा है बनते उसने, हैं, ये अपने बरोड़ों पे क्या उसने करते कहा हैं मैं है जानता तुम हूँ। सप्लायर हो, औरतें सप्लाई करती हो। जी अस्सलाम पहले वालेकुम। शार्प मैं शूटर ने मैसेजेस किए हैं। उमर रबाब साहबा हाँ, ये एक बात उमर रबाब साहिबा, ये जाहिद अस्कानी भाई ने बात की ना कि आप लोगों को शर्म नहीं आती है, तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अभी शर्म आ रही कि क्यों डिपेंड किया था, और वो भी मेरी ब्रॉड पर बैठकर, और अभी आप लोग एतराज भी कर रहे हो, वो डिपेंड भी इसी उम्र रबाब को कर रहे हैं, जी जी इसी की वजह से जी अस्सलाम वालेकुम। गालियां दी थी, आप अपने आप जी को अस्सलाम वालेकुम। बीबी को गालियां 5 दी थी, बस मुफ्तियान दादा थे बाबा पहले उसने और मैसेजेस एक में दी आमी है। को गालियां बक रहे थे। 5 मुफ्तियान आप लोगों में, मुफ्ती हर आदमी के साथ मुफ्ती लगा हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ कि गलत किया है। उस वक्त इनको उम्मे रुबाब को डिपेंड नहीं करना चाहिए था, चाहे लोग उम्मे रुबाब को गालियां देते, जो भी करते, इनको जवाब नहीं देना चाहिए था। वही मैं भी कह रहा हूँ, गलत किया। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम मस्ताना बाबा, मैं किसी जाहिद भी अस्कानी हालत साहब, में मुफ्तियों को इस तरह से गाली देना ये कभी भी जेब नहीं देता, कभी भी। पीर साहब आप बात को क्यों नहीं समझ रहे? पीर साहब ये बात यहाँ से शुरू हुई थी कि वो शख्स जो है शार्प शूटर, वो इनके पास गया, पहले उन्हें रहमत बीबी को गालियां दी, रहमत बीबी को कहा ये सप्लायर है, ये औरतें सप्लाई करती है, ये गंदी औरत है। जाफरी साहब ने उसको रोका, उसके बाद उसने कहा कि जो उम्र रुबाब को और उसके साथ चलेगा हम उसके साथ ये करेंगे। आगे से जाफरी साहब ने उनको जवाब दिया। यही मैं मस्ताना बाबा को कह रही हूँ, मैं 2 साल बाद जवाब दे रही हूँ, तो मेरी तकलीफ है। मैंने तो वो गंद भी नहीं बोला जो कोई ये बोलती है। उमर रबाब साहिबा, मैं मौजूद था, इन्होंने पहल की है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। इन्होंने बाद में मोड़ा है, बाद में आपकी तरफ मोड़ा है, बात इन्होंने मोड़ा है, वो जाफरी ने। मैं मौजूद था, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। लगाई रिकॉर्डिंग। हाँ, ये 5 उलमा बैठे हुए हैं और गालियां बक रहे हैं, गालियां। ये नहीं कहते हम सब एक हैं, शियों को गालियां बक रहे हैं, तेरी माँ उसके नीचे, उसकी माँ उसके नीचे, इसके माँ का, जिस तरह से ये बदमाश गाली दे रहे। कानी साहब, वो शियों का जो मामला है ना, उसको आप रहने दे, आप मौजू के ऊपर बात करें। काफरों की तो मिन्नतें